جی ناظرین آداب، میں عرفان عارف تحریک بقائے اردو کے فیس بک پیج سے لائیو آپ کے روبرو ہیں تین یار کی وساطت سے آج ایک نئے مہمان کو لے کے۔ جی ہاں، آج کے ہمارے مہمان ہیں محترم سراج عظیم نجمی صاحب، ادب اطفال کے ماہر ادیب ہیں، شاعر ہیں، اور اس سے پہلے کہ میں سب کچھ کہوں، ہم جانتے ہیں کہ آج ہم جس شخصیت کو آپ کے سامنے آپ روبرو لائے ہیں، سب سے پہلے تو میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ سراج صاحب، میں تحریک کی جانب سے آپ کا استقبال کرتا ہوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ عرفان صاحب۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا ناظرین۔ کہ آپ نے جی وزارت نبی صاحب جڑ چکے ہیں، وہ سلام کہہ رہے ہیں، تو وعلیکم السلام۔ میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہمارے مہمان آپ کے روبرو ہیں سراج عظیم نجمی صاحب، دلی سے ادب اطفال کے ماہر ہیں۔ ہم ان سے گفتگو کریں گے، لیکن سب سے پہلے حسب معمول میں جاننا چاہوں گا سراج صاحب آپ سے کہ آپ کے ابتدائی تعلیم و تربیت کے مراحل جو ہیں کب کہاں کس طرح سے طے ہوئے؟ السلام علیکم ناظرین۔ عارف صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے اس پروگرام میں مدعو کیا، اور میرے سلسلے میں عارف صاحب نے بہت ہی کہنا چاہیے کہ بہت مبالغے سے کام لیا ہے۔ میں بہت چھوٹی سی شخصیت ہوں، اور جہاں تک میرا تعلق ہے، میرا پورا نام، اصل میں میرا جو نجمی آپ نے نام لیا، نجمی میرا تخلص نہیں ہے، بلکہ یہ میرے دادا کا رکھا ہوا نام ہے نجمی۔ میرے والد نے میرا نام رکھا تھا محمد سراج عظیم، جو تاریخی نام ہے، میری پیدائش کی تاریخ اس سے نکلتی ہے۔ اور میری ابتدائی تعلیم جو ہے وہ میری پیدائش بریلی میں ہوئی ہے، تو میری ابتدائی تعلیم بھی وہی ہوئی بریلی میں، یو پی کا ایک شہر ہے، اور بلکہ اعلیٰ حضرت کی وجہ سے یہ بریلی شریف کہلایا جاتا ہے، بہت مشہور ہے بریلی، پورے نہ صرف یہ کہ ہندوستان بلکہ پورے دنیا میں مشہور ہے بریلی، کیونکہ اعلیٰ حضرت کی وجہ سے۔ بہرحال تو سراج عظیم کی تعلیم کے بارے میں اگر آپ معلوم کریں تو ابتدائی تعلیم میری جو ہے بریلی میں ہوئی۔ میرا جو خانوادہ تھا وہ تجارتی خانوادہ تھا۔ میرے یہاں بکرے کے چمڑے کا تجارت ہوتی تھی۔ میرے دادا بہت بڑے تاجر تھے چمڑے کے، اور میرے چونکہ اسی ماحول میں میری تعلیم ہوئی۔ میرے والد جو ہے وہ چونکہ باہر سروس کرتے تھے مدھیہ پردیش میں، وہ پہلے اردو کے شاعر ہونے سے پہلے، اردو کے پروفیسر ہونے سے پہلے انگریزی کے لیکچرر ہوا کرتے تھے مدھیہ پردیش میں، بھوپال میں۔ تو میرا آدھا جو بچپن ہے وہ بریلی میں گزرتا تھا، مطلب کہنا چاہیے کہ سال میں آدھا جو ہے وہ میں رہتا تھا بریلی میں، اور آدھا رہتا تھا میں بھوپال میں والد صاحب کی وجہ سے۔ تو ایک بڑا عجیب سلسلہ تھا یہ، اور اس میں چونکہ میں اپنے والد سے بھی انتہا محبت کرتا تھا، تو میں جب میرے والد چلے جاتے تھے بھوپال چلے جاتے تھے، وہ چھٹیوں میں آتے تھے بھوپال چلے جاتے تھے، تو میں جو ہے وہ ان کے لیے رویا کرتا تھا۔ اب چونکہ میرے دادا کو معلوم تھا کہ اپنے باپ سے بہت محبت کرتا ہے، تو وہ مجھے اپنے ساتھ رکھتے تھے زیادہ تر میں تو۔ اور میں آپ کو اسی بیچ میں برسبیل تذکرہ بتاتا چلوں کہ اسی کا نتیجہ ہے کہ میری ایک بہت مشہور کتاب دادا بیتی، وہ چونکہ دادا کی صحبت رہی میرے ساتھ،
اور میں بہت نزدیک تھا خاندان کے اور بچوں سے دادا کے اپنے، تو اس وجہ سے وہ دادا بیتی جو ہے وہ وجود میں آئی، جو ان کی کہانیوں کے اوپر ہے، ان کی وہ کہانی ہے جو انہوں نے مجھے بتائیں، جو انہوں نے مجھے میری کسی شرارت پر یا کسی اس کے اوپر بہت زیادہ شریر تھا میں، اور ایک میرے چچا زاد بھائی تھے اور میرے وہ برادر نسبتی بھی تھے، جاوید فہیم، تو ان کو ہم لوگ عرف عام میں ببو کہتے تھے۔ تو ببو اور نجمی کا بڑا یارانہ تھا، بہت جسے کہتے ہیں کہ ایک ایسی کہ لنگوٹیا یار جسے کہا جائے، وہ تھا۔ تو میری زیادہ تر جو کہانی جو بیس ہے، آپ اپنی وہ جاری رکھیے گا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو آپ کے دوست ہوں گے، کچھ ہمارے ناظرین ہیں جو اس وقت آپ کو سلام، دعا، آداب کہہ رہے ہیں، ان میں جناب اجے مالوی صاحب ہیں، سید اسماعیل صاحب ہیں، محمد اقبال صاحب ہیں، وزارت خان صاحب ہیں، محمد جان صاحب ہیں، جان محمد صاحب ہیں، ہمارے ناظرین میں بھی شمار جان ہوتے محمد ہیں، صاحب، اور ہم تمامی حضرات کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت میری طرف سے ان کا، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں، بہت ان کا میں احسان مند ہوں کہ وہ مجھے سن رہے ہیں۔ سن رہے ہیں شاہ جہان صاحب بھی ہیں، ترنم جہاں شبنم صاحبہ بھی ہیں، جی یہ تمام لوگ آپ کو سلام، دعا، آداب کہہ رہے ہیں۔ جی میں سب کو سلام کرتا ہوں، ان کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ بہت شکریہ ناظرین، بہت ترنم جہاں بھی ہیں، اسماعیل گوہر بھی ہیں، اور بہرحال کچھ لوگوں کو جانتا ہوں میں، کچھ لوگوں کو نہیں جانتا۔ بہرحال خیر، میں بیچ میں کہہ رہا تھا اسید اشر، جی یہ نوجوان ہیں، ان کی عمر 19 سال کی ہے، لیکن یہ ماشاءاللہ بہت اچھے بچوں کے ادیب ہیں اسید اشر جو ہیں، یہ جلگاؤں سے ہیں۔ ڈاکٹر اجے مالویہ تو آج وہ آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں، سوربھ خان صاحب ہیں، محمد انیس صاحب ہیں، جی محمد انیس صاحب ہیں، ڈاکٹر محمد انیس صاحب بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، سوربھ خان صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، تو بہرحال یہ تمام لوگ میں ہر ایک کا فردن جو ہے جواب دیتا ہوں، سلام کا جواب دیتا ہوں، ہر ایک کا فردن شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہرحال آپ نے اپنا وقت نکالا میرے لیے، اور ابھی بات چل رہی تھی تو اچھا ہوا اور صاحب بھی ہیں ہمارے، جی ہاں جی بہت شکریہ خورشید حیات صاحب، آپ بہت نوازش احسان۔ بتا رہے تھے دادی جان کے حوالے سے، دادا بیتی، جی تو میں وہ بتا رہا تھا کہ وہ دادا بیتی جو کہنا چاہیے کہ مورد وجود میں آئی، تو دادا کی وہ کہانی ہیں وہ کہ میں اور ببو بنتہا شریر تھے پورے خاندان میں، ہمارے چچا تایا کا پورا ایک خاندان تھا، ایک جگہ رہتے تھے ہم لوگ، تو اس میں سب سے زیادہ شریر میں اور وہ ببو تھے، جاوید فہیم صاحب۔ تو وہ اب جاوید فہیم کے لیے یہ ایک ٹریبیوٹ بھی ہے کہ ان کا اب سے 2 سال پہلے انتقال ہو گیا، اور میں ان کی بہت کمی محسوس کرتا ہوں اپنی زندگی میں، چونکہ میرے بہت قریبی، میرے بہت بچپن کے دوست، ہر وقت کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا، تمام جو اکثر باتیں ہوا کرتی ہیں بچوں کے اندر، گہرے دوستوں میں، وہ باتیں۔ بہرحال خیر، میں بتا رہا تھا کہ وہ دادا بیتی جو ہے وہ کس طریقے سے وجود میں آئی، تو وہ شرارتیں کیا کرتے تھے۔ دادا بنتہا ڈسپلن والے آدمی تھے، اور حالانکہ وہ ان پڑھ تھے، لیکن اس کے باوجود یہ تھا کہ بڑا ڈسپلن تھا ان کے اندر۔ اپنی اولادوں کو انہوں نے اتنے مرتبے پہ پہنچایا، جس کا ایک ثبوت میرے والد محترم پروفیسر حنیف کیفی صاحب جو نکلے، ان کو شاعر بنانے میں میرے دادا کا ہاتھ تھا۔ بہرحال تو شرارتیں کیا کرتے تھے ہم لوگ، تو دادا غصے میں آ کے مارتے تھے ہم لوگوں کو نصیحت کی وجہ سے۔ پھر وہ شاید ان کو احساس ہوتا ہوگا، کچھ ہوتا ہوگا کہ یہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہو گئی، یا میں نے مار دیا، پیٹ دیا تو بچوں کو۔ پھر اس کے بعد وہ جو ہے رات میں اپنے بڑے سے اونچے سے پلنگ پر بیٹھتے تھے رات میں، اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں کو بلاتے تھے، پھر وہ کہانیاں سناتے تھے ہمیں نصیحت کرنے کے لیے، اور تو وہ اپنے ساتھ کی گزری ہوئی کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے میں نے اس مناسبت سے اس کا نام رکھا دادا بیتی۔ جی
फिर बरेली में मेरी तरबियत हुई, दादा के साथ रहा, दादा के साथ, फिर वालिद साहब के साथ। वालिद साहब का मामला बड़ा अजीब था। वालिद साहब जो थे पढ़ने लिखने में बहुत कहना चाहिए कि सख्त थे, और उनकी सख्ती का आलम ये था कि मैं आपको बताऊं कि जब वो स्कूल में होते थे किसी क्लास के अंदर, तो वो कुरैशी साहब के नाम से जाने जाते थे। वहाँ गांव था, एक गांव में हायर सेकेंडरी स्कूल था, वहाँ वो इंग्लिश के लेक्चरर थे, तो वो कुरैशी साहब के नाम से जाने जाते थे। तो कुरैशी साहब अगर एक कमरे में होते थे इम्तहान के दौर में, जब बोर्ड का एग्ज़ाम होते थे, तो अगर कुरैशी साहब की ड्यूटी लगी है किसी कमरे में, तो आसपास के दोनों कमरों में नकल नहीं हुआ करती थी। उनकी सख्ती का ये आलम था। और उनकी तरबियत का मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा वाक़या बीच में बताता चलूं। आपके कश्मीर के ही, कहाँ मध्य प्रदेश, कहाँ कश्मीर, और फिर उस ज़माने में, ये मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ये तकरीबन आपको मैं बताता हूँ 68 और 70 के दरमियान की। वहाँ एक कश्मीरी बाबा थे, फल बेचा करते थे वो। और हमें आम खाने का बहुत शौक था। हमारे दादा आम बहुत ज़्यादा लाते थे, बहुत बहुत, मतलब ये कहना चाहिए कि मेरी एक कहानी भी है, आमों की चोरी। वो दादा बीती में आमों की चोरी एक कहानी भी है, वो उसी से मुतासिर कि मैं कहता हूँ कि लोगों ने, जिनके बाग होते हैं, उन्होंने इतने आम नहीं खाए होंगे जितने हमारे दादा ने हमें आम खिलाए, और तरह तरह के आम। हमारे बड़ा सा घर, उसके अंदर आम भरे रहते थे। तो वो कश्मीरी जो थे, अच्छा, अब हमारी आम खाने की आदत थी तो वो आम लेके आते थे। अच्छा, उस ज़माने में बहुत सस्ता ज़माना था, उस वक्त मेरे वालिद को तनख्वाह जो मिला करती थी 355 रुपये मिलती थी। लेकिन हमारे ज़्यादातर मामला ये थे कि अब चूँकि बड़े घर के थे, दादा भी बहुत कुछ यहाँ से करते थे सारा कुछ, तो वही शाही खर्च थे। तो वहाँ गांव में तो अगर कोई आम लेने वाला होता था तो मुश्किल से आधा किलो ले लिए, या पाव भर का एक आम ले लिया, उससे खा लिया। लेकिन वालिद साहब का मामला ये था कि चूँकि मुझे आम खाने का बहुत शौक था, खुद उनको भी बहुत शौक था, तो वो कश्मीरी जो आम लेकर आते थे 5-5 किलो। अच्छा, वो भी बेचारे चूँकि गरीब थे तो बहुत ज़्यादा फल नहीं लाते थे, कम फल लाते थे, इस वजह से तो अगर 5 किलो लाए हैं तो वालिद साहब पूरे 5 किलो तुलवा लेते थे। तो अब जाहिर सी बात है, एक आदमी को ये इस बात की उम्मीद होती है कि जहाँ पर ग्राहक अच्छा होता है तो वो वहीं पहुँचता है। एक दिन की बात थी कि मेरे वालिद जो थे वो सो रहे थे, स्कूल से आके दोपहर का वक्त था, और वो कश्मीरी बाबा जो थे वो लेकर आए, वो आम लेकर आए। तो उन्होंने आके मेरे दरवाजे पे आवाज़ लगाई। मैं निकल गया, मैं बाहर आंगन में खेल रहा था, मैं निकल के बाहर गया। तो उन्होंने कहा कि वो बेटा आपके अब्बू हैं? मैं उनको बोलो वो कश्मीरी आम लेकर आया है। खैर बहरहाल, मैं अब चूँकि छोटा था, मेरी उम्र ऐसी कोई 8-9 साल की उम्र रही होगी, 10 साल की रही होगी। तो मैंने वैसे ही, वालिद साहब सो रहे थे तो मैंने उनको जाके कहा, बाबू बाबू, हम वालिद साहब को अपने बाबू कहते हैं, बाबू बाबू वो कश्मीरी आया है, वो कश्मीरी आया है से फल वाला। वालिद साहब उस कश्मीरी के पास उससे आम लेने के लिए तो बाद में गए। उन्होंने मुझसे कहा, अच्छा अब आप बहुत बड़े हो गए हैं, आपको इतना तमीज़ नहीं है कि किसी बड़े को कैसे बुलाया जाता है। यहाँ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ आरिफ साहब कि अब आज के दौर में ये चीज़ अनका है। आज कोई इस तरीके से तरबियत नहीं है। अगर कोई और आज के दौर में तो होता है कि कोई सब्जी वाला आया, उसने किसी तरह का कुछ कह दिया बच्चे को, तो मैं कि उसके हाथ पैर सब तोड़ दे लोग मार पीट के। यहाँ वालिद साहब का मामला ये था कि उन्होंने मुझे बाकायदा ये डांट लगाई इस बात के लिए कि आप इतने ज़्यादा बड़े हो गए हैं कि एक बुजुर्ग आदमी को जो है आप आया है करके बुला रहे हैं। ये तरबियत हुआ करती थी, जिस तरबियत का फुकदान आजकल के दौर में है। आज कोई, मुझे कहने दीजिए आप इस बात को, कि आज का कोई भी माँ, कोई बाप अपनी औलाद को इस तरह की तरबियत नहीं दे रहा है जो मेरे वालिदैन ने मुझे तरबियत दी, जो मेरे दादा ने मुझे तरबियत दी। पुकारेंगे नहीं। आज तो बच्चों को भी वालिदैन जो है मतलब बड़े बेहुदा से अल्फाज से बुलाया करते हैं।
آج میں آپ کو ایک چیز سنیے، میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا ہوں اسی تربیت کے سلسلے کی۔ ایک زمانہ تھا کہ جب یار یار کہنا جو ہے بڑا بڑا معیوب لفظ تھا، اور خاص طور سے اگر نوجوان، اور اس میں بھی اگر کوئی لڑکی یار بول دے تو وہ تو اس کے پاس سیدھا یہ ٹھپا لگتا تھا کہ یہ جو ہے یہ آوارہ ہو گئی یہ لڑکی، یعنی یار کہنے پہ یہ لگتا تھا کہ یہ جو ہے یہ لڑکی آوارہ ہو گئی، یہ لڑکا آوارہ ہو گیا، اتنا زیادہ معاملہ تھا۔ اور آج تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج ذرا سارے بچے، لڑکیاں، بیٹیاں اور خود مائیں اور باپ بھی وہ اولادوں سے یار کر کے بات کرتے ہیں۔ جبکہ میں ایک بار مجھے یاد ہے میرے چچا نے، میں نے کسی کو یار کہہ دیا تھا، چھوٹا سا تھا میں، کسی کو یار کہہ دیا، میرے چچا نے میرے منہ پہ ایک تھپڑ مارا، بولے یار کا مطلب جانتا ہے کیا ہوتا ہے؟ اب میں ظاہر سی بات ہے آنکھوں میں آنسو لے کے ان کا تھپڑ کھا کے میں خاموش ہے، بولے یار کا مطلب جانتا ہے تو آوارہ ہو گیا ہے؟ یار کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کسی کی ماں کا یار ہو۔ یہ مطلب میں آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں کہ آج ہم اس دور میں 40 سال کے اس عرصے میں تہذیب کہاں پہنچ گئی ہے، کس جگہ، بلکہ تہذیب کو میں کہوں کہ تہذیب کا تو بالکل پائمال ہو گئی ہے، بالکل قطن۔ اور چونکہ نفسیات اور بالخصوص بچوں کے ادب کے ماہر مانے جاتے ہیں، اسی حوالے سے آپ اتنے سنجیدہ گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، میں اس بیچ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ کچھ مزید ناظرین جڑے ہیں، جن میں سے کبیر احمد قادری صاحب ہیں، محمد اقبال صاحب ہیں، خورشید حیات صاحب ہیں، شبیر احمد ہیں، نسیم احمد ہیں، نصرت علی خان قاضی صاحب ہیں، زبیر مغل صاحب ہیں، سلیم محی الدین ہیں، سلیم محی الدین صاحب، راجہ صابر صاحب پاکستان سے ہیں۔ میں آپ تمامی حضرات کا استقبال کرتا ہوں، آپ سب کی محبتوں کا میں بس جواب آپ کے سامنے ہوں، آپ سنیے، میں مشکور رہوں گا آپ کی محبت۔ جی، اتنے خوبصورت جو آپ نے تہذیبی مراحل، ابتدائی تعلیم و تربیتی مراحل جو ہیں طے کیے بریلی اور اس آس پاس کے ماحول میں، اس کے بعد آپ کب لکھنا شروع ہوئے؟ آپ کو کیا لگا کہ میرے اندر جو دنیا ہے، جو اتنی نفاست سے، جو اتنی نفیس ہے، جو اتنی پاک ہے، جو اتنی سلیس اور شستہ زبان جو ہے، عوام تک پہنچانے کا کیا ذریعہ بنا؟ یعنی غزلیں بنی، کوئی نظم بنی، یا کوئی کہانی بنی؟ آپ نے لکھنا کب، کیسے شروع کیا؟ عارف صاحب، آپ کو بتا دوں کہ لکھنا شروع کب کیا ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ میں چھوٹا سا تھا، 5ویں کلاس میں، تب سے ہی میں بہت پڑھاکو تھا، اور پڑھاکو آپ کو بڑی دلچسپ باتیں ملیں گی میری، میں آپ کو بتاتا چلا، بہت پڑھاکو تھا تو کتابیں میں پڑھتا تھا، اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ میں پھر وہی ایک بات بتاتا ہوں، تربیت کا معاملہ بتاتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا، شمع نکلتا تھا، شمع رسالہ نکلتا تھا دہلی سے، فلمی رسالہ تھا، اور وہ شرفا کے خاندان میں شمع رسالہ جو ہے وہ کسی نوجوان لڑکے یا لڑکی کا پڑھنا یا عورتوں کا پڑھنا جو ہے معیوب سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ اردو کو مقبول بنانے میں شمع کا، کھلونا کا، اور 20ویں صدی کا خاتون مشرق کا، اور اس کے علاوہ ابن صفی کا بہت بڑا ہے۔ اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ میں 7ویں کلاس میں تھا تب میں ابن صفی کو پڑھتا تھا، اور شمع چونکہ میرے چچا پڑھتے تھے، چچا جی آپ کی آواز لوگ آج بھی ابن صفی کو پڑھنے سے کتراتے ہیں، گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، یا نہیں، میرے تو وہ ابن صفی کا ناول پڑھنے کے بعد تو صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ میری جو طبیعت کا رجحان ہے آج تک جو ہے، میرا رجحان جو ہے وہ یہ ہے کہ میں تجسس، ہر چیز میں آپ کو میری کہانیوں میں بھی تجسس ملے گا، میں تجسس کی تلاش میں رہتا ہوں، اور بہت زیادہ۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ
वो मेरे पढ़ने का ये मामला था, मैं 7वें क्लास में था तो मैं जासूसी नावल पढ़ता था, इब्ने सफ़ी, वो मेरे चचा लेके आते थे। और शमा शमा चूंकि अच्छा होता ये है कि जितना जिस चीज़ के लिए आपको मना किया जाए, खास तौर से बच्चों को, तो बच्चे उसी को ज़्यादा उसकी तरफ भागते हैं कि ये इसमें है क्या जो बड़े मना कर रहे हैं। और मेरी चूंकि तजस्सुस की आदत थी तो वो मैं शमा पढ़ता था, और शमा पढ़ता था तो मैं पिटाई लगती थी, मेरे ताया मुझे मारते थे कि ये लड़का जो है शमा पढ़ता है और ये जासूसी नावल पढ़ता है, ये बिगड़ जाएगा। उस ज़माने के लोगों का असल में सोचने का अंदाज कुछ दूसरा है। उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि सही भी था कि तहजीब का और उसका मामला था। आज जो बेहयाई, बेशर्मी और ये तमाम चीज़ें हैं, जो बेटा बाप के सामने बेहयाई बेशर्मी की बात करता है, बेटी माँ के सामने बेशर्मी, या आपका मुआशरे में आप देखें कितना वो गंदगी या बेहयाई हो गई। इसकी वजह ये थी कि बड़ों का कंट्रोल रहता था, उनका चेक रहता था। मैं आपको बताऊं, मैं शमा पढ़ रहा था, शमा पढ़ के मैं स्कूल से आया, और इसी वजह से मेरी सेहत भी बहुत वो रही कि मैं खाने पीने में इतना ज़्यादा वो नहीं करता था, और मेरे चचाजाद भाई, तायाजाद भाई सब खाने पीने में बड़े मस्त रहते थे। मैं अपने पढ़ने में आया, स्कूल से आने के बाद अपने कपड़े उतारने के बाद मुँह हाथ धोया, खाना खाया, अम्मी खाना खिलाने के लिए करती थी, और मैं मालूम है कि कोई ना कोई किताब ढूंढ के न गए। शमा होता तो शमा जो है मेरी पहली पसंद था, और मुझे मालूम था कि मेरे ताया और मेरे सब लोग मारे पीटेंगे। तो मैं क्या करता था, हमारा बहुत बड़ा घर है, हमारा घर जो है बरेली में बहुत बड़ा घर है, तो तकरीबन 22 कमरे हैं, एक हॉल है और बहुत बड़ा आंगन है, वरांडे हैं। तो उसमें एक जो कमरा था वहाँ पर बिस्तर रखे जाते थे पूरे ख़ानदान के, और वो बहुत ऊंची एक ढेरी बन जाती थी, बहुत ऊंचा एक उसका अड़म लग जाता था। तो मैं क्या करता था कि लाइट तो जलाता नहीं था उस ज़माने में। आजकल के मकानों में तो रोज़न और रोशनदान, इनका तो तस्वुर ही ख़त्म हो गया, और इसी वजह से ये जो है उसे अदब से भी निकलते जा रहे हैं रोज़न और रोशनदान। लेकिन रोशनदान और रोज़न जो थे वो उस ज़माने में हुआ करते थे। तो मैं क्या करता था, वो जो बिस्तर रखने वाली जो कोठरी थी, मैं उसमें ऊपर बिस्तरों के ऊपर चढ़कर और वहाँ बैठ के वो रोशनदान की रोशनी में मैं शमा रिसाला पढ़ता था। मेरे ताया जो थे वो मेरे पर बहुत चेक रखते थे। उनको मालूम था कि ये लड़का पढ़ाकू है और ऐसा तेज़ है, तो वो आते ही मुझे ढूंढते थे। एक दिन मैं शमा पढ़ रहा था, वो गर्मी के दिन थे, ऊपर मैं बैठा हुआ उससे पढ़ रहा था, बिस्तर रखे हुए थे, बिस्तरों के ऊपर, और वो मेरे ताया पुकारते फिर रहे हैं पूरे घर में कि कहाँ वो नजमी कहाँ है। खैर वो आके वो उस कोठरी में आ गए, और वो देखा कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो बस उन्होंने वहीं से मेरी टांग घसीटी नीचे। टांग घसीटने के बाद उन्होंने मेरे 2 थप्पड़ लगाए। और मैं आपको ये भी बताया, ये मैं वाकया बहुत सुनाता भी लोगों को, महफिलों में भी सुनाता हूँ, कई सेमिनार में भी सुनाया है मैंने, कि मैं उस वक्त सलाम बिन रज़ाक की कहानी पढ़ रहा था। सलाम बिन रज़ाक एक बहुत बड़े, आप आजकल के दौर के बहुत अच्छे अफसाना निगार हैं, साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर हैं। तो सलाम बिन रज़ाक की मैं कहानी पढ़ रहा था। अच्छा, वो हो सकता है कि वो उन्होंने पहले पढ़ ली हो कहानी वो, तो मैं जब उतरा तो वो सलाम बिन रज़ाक की कहानी जो थी वो मेरे हाथ में थी, तो उसमें शमा में निकली थी, वो मैं था। अब वो मेरे ताया को बड़ा गुस्सा आया, तो उन्होंने बहुत मुझे मेरी मार लगाई। मार लगाने के बाद मेरे दादा के पास ले गए, और दादा से बोले कि भाई मियाँ, ये लड़का जो है ये बिगड़ जाएगा, ये जो है सलाम बिन रज़ाक की कहानियाँ पढ़ रहा है, ये लड़का जो है आवारा हो जाएगा। तो उस आवारगी ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया कि आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। आपको मैं बताता चलूं, अदबी आवारगी कह सकते हैं। जी, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, हेलो जी। तो मैं ये बता रहा हूँ कि इस बीच में हमारे साथ फूल खान साहब जुड़ चुके हैं, डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी साहब जुड़ चुके हैं, जो आपको सलाम कह रहे हैं, और ये भी लिख रहे हैं कि अदब इत्तफाल के माहिर हैं आप। और न्यूजीलैंड से शाजली साहिबा जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। MA अंजुम साहब आपको कह रहे हैं कि बहुत महंगी गुफ्तगू हो रही है।
मसूद चौधरी साहब आपको सलाम और दुआ कह रहे हैं। सलीम मोहिउद्दीन भी बहुत कह रहे हैं कि नवाजिश, बहुत प्यारी बातें। और बहुत नवाजिश तो एहसान। फूल खान साहब का, मुश्ताक साहब का, तमाम तर जितने भी हमारे नाजरीन हैं इस वक्त बने हुए, उन सब का इस्तकबाल करते हैं और शुक्रिया अदा भी करते हैं कि आप हमारे साथ बने हैं। सब तो सबके सलाम का सिराज जवाब साहब, आप मुझे ये भी आप बता मेरी तरफ से आप इन कि सबके सलाम का जवाब दीजिए। जी जी जी, मैं सलाम का जवाब सबका देता रहूंगा। मैं अब यहाँ ये भी जानना चाहूंगा कि सुंबल साहिबा भी जुड़ चुकी हैं, वो भी आपको सलाम कह रही हैं, आपकी बातों पे उन्होंने वाह वाह किया है। मुझे यहाँ ये भी बताते चले आपके, जैसे कि मैं पहले कहा था कि आप कह रहे हैं कि आप बचपन से पढ़ाकू थे, ठीक है ना, लिखने पढ़ने का शौक था। किताबी सूरत में कब कौन सी कोई कहानी छपी या कोई अफसाना सामने आया, और उसके बाद ये जो आज आपने खास मौजू इंतखाब किया है, और हम भी जानते हैं कि आप इस फील्ड के, इस मैदान के माहिर हैं, अदब इत्तफाल, तो मैं चाहूंगा कि पहले आप थोड़ी सी ये कहानी बताएं हमें कि प्रिंट मीडिया में या इस जो हमारी दुनिया है, अदबी दुनिया, इसमें पहले आप किस हैसियत से नमूदार हुए। देखिए आरिफ साहब, आपने जो ये सवाल किया कि मैंने कब जो है कहानी लिखना शुरू करी, तो मैं आपको बता दूं, मैंने सन 78 में पहली कहानी लिखी थी अपनी। और आपको हैरत होगी, सुने आप, 78 में मेरा जन्म है। जी जी, आप एक सुने आप आरिफ साहब, बड़ी हैरत की बात है कि वो जो मैंने कहानी लिखी थी वो तकरीबन 10 सफ़ा फुल स्केप पेपर्स के ऊपर 10 सफ़ा थे वो। और वो जो था एक तर्जुमा था, अंग्रेजी से उर्दू में तर्जुमा था। एक बहुत मशहूर कहानी हुआ करती, क्लासिक्स में उनका शुमार होता है, अनांसे एंड स्पाइडरमैन, अनांसे एंड स्पाइडरमैन। तो मैंने जो पहली कहानी जो 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 तर्जुमा की, वो एनांसी की कहानी थी। और 10 पेज आप समझ लीजिए कि उस वक्त मैं जो था सन 78 में शायद 9th या 10th क्लास में था मैं। तो उसमें जब मैंने किया तो तर्जुमा करके पहली तो मुझे, अगर आप मेरी पहली तख्लीक पूछें तो मेरी पहली तख्लीक जो है वो तर्जुमा शुदा कहानी थी। और लेकिन पहली जो तबाज़ात थी वो क़याम तालीम के एक एडिटर हुआ करते थे, हसीन हसान साहब। उनके पर मैंने उनकी किताब भी, उनके पर किताब मुरतब की है। हसीन हसान साहब हुआ करते थे। तो हसीन हसान साहब, ये मैं वाक़ई आपको बताऊं कि सन 69 की बात है। सन 69 में आदमी चांद पर जाने का खलाई जो है वो सफ़र शुरू हो गए थे, और वो उसके हम बहुत ज़्यादा कहानियाँ पढ़ रहे थे। तो मुझे मालूम हुआ कि साहब वो जो है अमेरिका जो है अपोलो 11 भेजेगा, वो उसमें आदमी होंगे, आदमी जो है वो चांद पर उतरेंगे। अब वो मेरा तजस्सुस जो था, मैंने आपको पहले बताया कि मैं बहुत तजस्सुस वाली तबीयत का, मुतजस्सिस नेचर का आदमी था। तो मैंने अपने वालिद से कहा, मेरे वालिद जब आए वहाँ से, भोपाल से आए, तो मैंने उनसे वालिद से कहा कि बाबू मुझे अखबार लगवा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि भाई क्यों, अखबार क्यों लगवा दे। तो मैंने कहा मुझे आप अखबार लगवा दीजिए, क्योंकि वो आदमी चांद पर जाएगा ना। तो बोले अच्छा। उन्होंने जब मेरा शौक़ देखा, मेरे वालिद ने मेरा शौक़ देखा, तो उन्होंने मुझे आज तक याद है, हिंदी का एक अखबार आता था, हिंदुस्तान, आज भी निकलता है हिंदुस्तान। तो मेरे लिए हिंदुस्तान जो है वो लगाया, और हिंदुस्तान में चांद की खबरें, चांद से मुताल्लिक़, रॉकेट से मुताल्लिक़, और मतलब वो मेरा एक तरीके से। और मैं आपको बता दूं, बहुत से मेरे तमाम नाज़रीन को बता दूं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो चांद पर पहला जिसका कदम रखा था, वो मेरा बचपन से मेरा आइडल है। बचपन से मैं उसको बहुत मानता हूँ, बहुत मुझे, और उसकी वजह से मेरा एक बड़ा सुंबल सबिहा साहिबा का एक मैसेज तो बहुत से आए हैं, जैसे
मीर साहिब हसन साहब जो तैयार के एडिटर हैं, जी जी वो जी आपको जी सलाम जी और दुआ कह रहे हैं, और मेरे लिए एहसास है कि वो कह रहे हैं कि बहुत अजीम शख्सियत के साथ आप बैठे हैं, शुक्रिया। अरे नहीं नहीं और नहीं, अरे मीर साहब से कहिए कि भाई ये गलत बात है, आप बहुत बड़ी शख्सियत है, मैं नहीं, उसके अल्लाह ना करे भाई, बाद मैं सबिया बड़ी शख्सियत नहीं, बिल्कुल बड़ी शख्सियत नहीं, मैं आप लोगों के सामने, सुंबल सबके साहिबा सामने कह रहा हूँ, कहेंगे मैं कि आप कोई मेरे बड़ी साथ शख्सियत के नहीं। हैं। जी सुंबल साहिबा का कहना है कि आप मेरे साथ के हैं, माशाल्लाह। तो इन्होंने ये कहा अच्छा, था, मैं इसलिए आपको रोका था कि चांद पर शेर कहा उस वक्त, क्या उस वक्त आपने चांद पर शेर कहा था? नहीं नहीं, मैंने चांद पर कोई शेर बोल, तो मेरी उम्र ही क्या थी, मैं आपको, मेरी उम्र बहुत छोटी थी, और मुझे उसका मैं लगा आपको पूरा, मैं आपको वाकया बताता हूँ, और आप उस बच्चे की आपको कैफियत बताता हूँ। शेर तो नहीं कहा था, लेकिन आप मेरी इस स्टोरी से मैं जरूर। सुनूंगा। मैं और आपको बताता चलूं कि सज्जाद हुसैन सियाल साहब हैं, वो भी कह रहे हैं कि अदब इत्तफाल के माहिर को हम सब सुन रहे हैं। उसके बाद सलीम मोहिउद्दीन साहब कह रहे हैं कि आप हमारा जहर अरे शख्सियत ये हैं। हमारे दोस्त है और सलीम मोहिउद्दीन सज्जाद साहब, इनको बहुत। सियाल साहब हमें नवाज रहे हैं। और सबिया साहिबा कह रही हैं कि शेर कहा। अब बहरहाल अब आप गुफ्तगू करें कि उस, मैंने, अच्छा वो कह रही है कि मैंने कहा, जी शुक्रिया। तो आप शेर लिख दीजिए, मैं पढ़ दूंगा। बहरहाल मैं ये कह रहा था आरिफ साहब कि आपने मुझसे पूछा कि उस बीच में मेरी पहली कहानी जो मैंने लिखी थी, वो तो लिखी क्या थी, तर्जुमा की थी, वो तो थी एनांसी वो के आपने ऊपर थी। और मेरी एक तबाजात कहानी थी, उसकी जो बैकग्राउंड है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो मेरी वो कहानी क्यों बनी, और वहीं से मैंने बस फिर चलना शुरू किया मैंने वहां से। तो जनाबे वाला, वो उस जमाने में मेरे दादा सन 64 में हज के लिए गए थे। वहाँ से वो 3 ट्रांसफर लेकर आए थे अपने बेटों के लिए, एक मेरे ताया के लिए, एक मेरे वालिद के लिए, एक मेरे चचा के लिए। तो चचा का जो ट्रांसफर था वो छोटा था, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त ट्रांसफर था, और जर्मनी का था, फिलिप्स का था वो। तो मेरे दादा को खबरें सुनने का बहुत शौक था, बहुत ज़्यादा शौक था। और मुझे, चूँकि मैं बच्चा था, मैंने वो पढ़ना शुरू किया, चाँद के बारे में, रॉकेट के बारे में कहानियाँ पढ़ना शुरू की। उसी ज़माने में एम यूसुफ अंसारी की एक किताब आई, ज़ोहरा का सफ़र, और ज़फ़र प्यामी की एक किताब आई जिसमें वो चाँद के सफ़र के सिलसिले में था। तो उसमें ये हुआ मोहतरम कि मैं देखता था, मुझे ये लगता था, अब आपको मैं वो सिलसिलेवार वो चीज़ बता रहा हूँ कि चूंकि मेरे पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास था, जिस वक्त जो है अपोलो 11 को चांद पर भेजने के लिए छोड़ा गया, तो मेरे पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास था। बच्चे की आप तजस्सुस की बात देखिए, और उसकी बचपन देखिए। मैं उस मैग्नीफाइंग ग्लास से चांद की तरफ रुख करके देखता था कि कहीं कहीं वो जो है वो रॉकेट नजर आता है कि नहीं आता है। मैं उस मैग्नीफाइंग ग्लास से ये देखता था कि ये अब वो मेरे जो तायाजाद भाई, चचाजाद भाई थे, वो सब मेरा मजाक उड़ाते थे। अब वो कहते थे, अरे हाँ हाँ हाँ, ये जो है ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हो गए, ये देखो ये जो है ये। खैर, लेकिन मैं उन सब चीज़ों से बेपरवाह। फिर उसके बाद मुझे मालूम हुआ 19 जुलाई को का दिन था। मेरे दादा रात को, हमारा बहुत बड़ा सा आंगन था, वहाँ पर दादा का एक ऊंचा सा पलंग था, उसके ऊपर दादा लेटते थे। मतलब वो इतना ऊंचा था कि मैं खड़ा हुआ था दादा की उसके पलंग की पट्टी के साथ। तो मेरा सर जो है वो उनकी पट्टी पर लग रहा था, इतना अब ऐसे उसकी ऊंचाई का अंदाजा लगा लीजिए, 10 साल का बच्चा कैसे। तो वो दादा जो थे, दादा को भी शौक हुआ, दादा नई नई चीज़ें जानते थे। दादा की भी आपको कहानी थोड़ी सी सुनाऊंगा इस बीच में। तो दादा जो थे वो कमेंट्री सुन रहे थे। आप मेरी याददाश्त को देखिए, उस वक्त की, उस 10 साल के बच्चे की याददाश्त को देखिए। हमारे इंडिया से 2 लोग कमेंट्री करने के लिए गए थे, वो पूरी दुनिया में कमेंट्री हो रही थी उसकी, अपोलो के लैंडिंग की, जो इंसान के लैंडिंग की जो है वो कमेंट्री हो रही थी, वो पूरी दुनिया देख रही थी। तो चूंकि मैं बहुत ज़्यादा इसमें, मेरे ख़ानदान के किसी बच्चे को इसका पता भी नहीं था,
और तो मैं सब वो जो था, दादा सुन रहे थे कमेंट्री, मैं दादा की पट्टी पे खड़ा हो गया। अब दादा मुझे कहने लगे बेटा सो जाओ जाओ। मैं कहा नहीं दादा मैं कमेंट्री सुनूंगा, वो आदमी आदमी जा रहा है ना चांद पे। बोले अब तुम सुनोगे तो अच्छा खड़े रहो। तो वो मैंने सुनी। उस वक्त मुझे आज तक याद है, कमेंट्री करने के लिए हमारे इंडिया से इंग्लिश के बहुत अच्छे कमेंटेटर थे, वेन वैन डिमेलो। और हिंदी के जो कमेंटेटर थे वो थे जोगा राव। तो ये दोनों हजरात जो है वहाँ कमेंट्री करने के लिए गए हुए थे अमेरिका, वहाँ से स्पेस सेंटर से वो कर रहे थे कमेंट्री। तो आप ये देखिए आरिफ साहब कि वो एक छोटा सा बच्चा, 10 साल का बच्चा, उसके आप तजस्सुस की बात, मैं आपको जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जो आप जिस पॉइंट पर लाना चाह रहा हूँ कि आपने कहानी कब लिखना शुरू करी या क्यों लिखना शुरू, कैसे, तो वो 10 साल का बच्चा इतने इन्हिमाक से चांद की लैंडिंग को सुन रहा था, नील आर्मस्ट्रांग की। और मैं आज मुझे बस सिर्फ 3 मिनट का फ़र्क था। मुझे याद है कि इंसान जो है चांद पर पहला कदम जो रखा इंसान ने, वो 2:43 पर रखा, जो मेरे दादा ने बताया था, 2:43 पर रात के वक्त। और लेकिन जो इसमें हिस्ट्री में आता है या जो लोग बताते हैं, जो अखबारों में आया, वो 2:46 पर बताते हैं। तो मतलब मैं आपको अपनी इस चीज़ का पता नहीं कि आप इसको किस नज़रिए से देखेंगे एक बच्चे को, या हो सकता है कि बिल्कुल एक तरीके से आपको देवमालाई कहानी लगे कि साहब ये पता नहीं क्या बैठे हुए सुना रहे हैं किस तरीके से, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं यहाँ एहसास और जज्बात को बेदार करने वाली कहानी है। इस बीच में मैं आपको बताता चलूं, ये कहानी आपकी सुनेंगे हम। सलीम मोहिउद्दीन साहब ने लिखा है कि उम्र तो आज भी क्या है, दरअसल आपने उम्र को थाम रखा है और अपने अंदर के बच्चे को मरने नहीं दिया, इसीलिए अदब इत्तेफाल के सच्चे नब्बाज हैं। तबिया सुंबल साहिबा भी कह रही हैं कि बहुत खूब। और मैं आपको बताता चलूं कि तबस्सुम नाडकर भी हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़ चुकी हैं, फिरोज आलम साहब जुड़ चुके हैं। तबस्सुम नाडकर हमारी बहन है, वो हमारी तबस्सुम नाडकर जो है हमारी बहन है, और बहुत ही ज्यादा हमारे साथ जो है वो मैं उनको क्या कहूँ, बड़ा हक जताती हैं अपना। और तमाम लोग जो है आपके इस प्रोग्राम की सराहना कर रहे हैं, जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं। और इस बीच में फूल खान साहब ने लिखा है कि कहाँ इनका कमेंट, हाँ, कि 70 के दौर में उर्दू को अदबी घरों की नई नस्ल तक पहुंचाने में रिसाला शम्मा और हुदा का अहम किरदार रहा है। बेशक इस बीच में बिल्कुल सही, मैं आपको बताता चलूं कि संबल साहिबा ने शेर भी लिखकर भेजा है, जो चांद पर जाने के बाद जिनके जहन से निकला होगा। शेर है कि कमाले अकल ने सदियों का ख्वाब, मैं वो शेर यहाँ कहीं आया था, मैं उसे वहीं से देखा, हाँ, शेर देखिएगा कि ये शेर लिखा है कि कमाले अकल ने सदियों का ख्वाब तोड़ दिया, कमाले अकल ने सदियों का ख्वाब तोड़ दिया, करीब जाके जो देखा तो चांद था पत्थर। तो बहुत खूबसूरत इनके एहसासात और जज्बात। वाह 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 वाह। यकीनन ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो चांद की बुढ़िया जो है वो वहीं उसी पत्थरों में दफन हो गई। एज सुन एज जो है वो नील आर्मस्ट्रांग ने अपना पहला कदम रखा वहां पर, वो बुढ़िया वहीं खत्म हो गई। उसके बाद से चांद की बुढ़िया का जी, जिंदगी के चंद लम्हे खुद की खातिर भी रखो, भीड़ में ज्यादा रहे तो खुद भी गुम हो जाओगे। उसी के साथ है कि चांद घर धरती पे उतरा देख कर डर, हाँ, हर हंसी मंजर से यारो फासले कायम रखो, चांद घर धरती पे उतरा देख के डर जाओ। तो बहरहाल फिरोज आलम साहब, आप अब तो मैग्नीफाइंग ग्लास से सैटेलाइट नहीं देखते मैं आज भी आपको बता दूं, आरिफ साहब बहुत अच्छा सवाल किया उन्होंने। मैं आज भी मैग्नीफाइंग ग्लास से अपनी उन कदरों को देखता हूँ, वो कदरें जो पीछे छूट गई। आप यकीन मानिए वो मैग्नीफाइंग ग्लास मुझे
अपनी आंखों के सामने से हटाते हुए मुझे बड़ा डर लगता है। कभी कभी मैं बहुत बहुत कहना चाहिए कि अफसुर्दा हो जाता हूँ, जो मैं ख़ास तौर से अपने समाज के बच्चों की जो तमीज़ और तहज़ीब जो देख रहा हूँ, और पता नहीं कहाँ किस जगह गुम हो गई वो हमारी तहज़ीब, कि हम दुनिया में अपनी तहज़ीब के, यहाँ आपको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाता चलूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐ मुसलमानों, अगर अल्लाह को तुम्हें जन्नत, उसके अल्फाज इस तरह के, तुम्हें अगर जन्नत में भेजना मंजूर नहीं होता तो तुम्हें भी दुनिया की तमाम आसाइशें अता करता तुम्हें, लेकिन तुम्हें अल्लाह ने जो दौलत दी है वो तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत जो है वो तुम्हारा अखलाक है। आज मुझे अफसोस है कि मेरे समाज की जिस जिस तहज़ीब का हम जिक्र कर रहे हैं, और जिस कहना चाहिए कि समाज का हम जिक्र कर रहे हैं, आज वहाँ तहज़ीब अनका है, आज जानता भी नहीं कोई, आज तहज़ीब जो है ख़त्म हो गई बिल्कुल। और इसमें मैं आपको बता दूँ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का एक बहुत बड़ा मक़ूला है, मक़ूला का एक उनका एक मज़मून है, उसमें मौलाना ने लिखा है कि जब कौमें तनज़्ज़ुल पज़ीर होती हैं तो उनकी सोच का म्यार क्या हो जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं मतलब ये मौलाना का मैं आपको कोट कर रहा हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ कि जब कौमें तनज़्ज़ुल पज़ीर होती हैं तो उनके सोचने का म्यार क्या होता है। जिस वक्त इस्लामी फ़ौजें यूरोप को कैप्चर कर रही थी, उस वक्त यूरोप के अंदर जो पादरी हुआ करते थे, या जो भी उनके आलिम हुआ करते थे, या जो उनके लोग हुआ करते थे, उनकी अपनी प्राइवेट महफिलों में ये बहस व मुबाहिसा हुआ करता था कि आया नाउज़ुबिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पाखाना जो है वो पाक है कि नापाक है। यानी ये सोच का म्यार यहाँ पहुँच जाता है और ये तहज़ीबों को मिटा देता है। जब सोच का म्यार इतना गंदा हो जाए, मैं कहने का मतलब मैं आपको बताना चाहूँ, तो वो फिर जो है कुछ नज़र वहाँ सिवाय इंतशार के और इसके अलावा कुछ नहीं रहता। तो हमारी जो कहना चाहिए कि जो भी हमारे कदरें हैं उनको तो हमने भुला दिया है। अब इसी चीज़ को लेके आरिफ साहब, एक ज़माना था, जब मेरे बचपन की बात बता रहा हूँ, कि जब हर घर में बच्चों के रसाइल आया करते थे। हमारा घर बरेली में चूँकि बड़ा था, हम अमीर घराने के बच्चे थे, हमारे यहाँ तमाम रसाइल और किताबें और ये पता नहीं नावल सब कुछ आया करते थे। तो हमारा जो मोहल्ला है वो थोड़ा गरीबों का मोहल्ला है, मतलब उसमें कि इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उस ज़माने में तनख्वाहें भी कितनी होती थी, लोगों की आमदनी भी कितनी होती थी, तनख्वाहें 50 रुपए की तनख्वाह, 100 रुपए की तनख्वाह। बिजनेस भी अगर चल रहा है तो मेरे दादा का भी जो बिजनेस था, तो आप समझ लीजिए कि उस ज़माने में लखपति थे। वो जो आज के ज़माने में करोड़पति, वो उस ज़माने में लखपति थे। खैर, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो जो मैगजीन्स आया करती थी, हर घर में जाया करती। हम जब पढ़ लेते थे तो हमारे मोहल्ले की जो औरतें थी, बच्चे थे, मर्द थे, वो हमारे घर से जो है वो मैगजीन्स मांग कर ले जाते थे कि हमें दे दीजिए पढ़ने के लिए, हम कल वापस कर देंगे, हमें जासूसी नावल दे दिए, हम कल वापस कर देंगे। आज मुझे बताइए कि आज हमारे यहाँ क्या इस तरह का शौक़ है? खुद आप अपना मुहासबा कीजिए कि हम अपने बच्चों को क्या ये बता रहे हैं आज?
आज हम उनको बच्चों को अपने कोई भी हम अपने बच्चों को जो है मैकडॉनल्ड ले जाके बहुत बड़ा 500 रुपए का जो है वो मील खिलाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कौन कौन से नए नए नाम पता नहीं क्या क्या, पिज्जा और ये तमाम चीजें खिलाते हैं। क्या कोई बाप, कोई माँ, कोई दादा, कोई ताया, कोई चचा, कोई फूफी, कोई खाला आज अपने बच्चों को कोई किताब देती है या कोई बताती है कि ये जो तुम दिन रात जो ये, बल्कि किताब तो क्या देगी, 20 रुपए की किताब के लिए पैसा खर्च करते हुए उनका दिल दुखता है। लेकिन एक मासूम बच्चे को, 5वीं क्लास के, 4थे क्लास के बच्चे को एक 20,000 का, 10,000 का, 5,000 का मोबाइल फोन लेकर देते हैं ताकि हमारी जो है आज़ादी में फर्क ना पड़े। बिल्कुल, देखिए मैं आपकी इसी गुफ्तगू से मेल खाते हुए कुछ सवाल आए हैं, इसलिए मैं आपकी गुफ्तगू रोक रहा हूँ। सलीम मोहिउद्दीन साहब लिख रहे हैं कि आप किस तरह बूढ़ों को बच्चों के लिए लिखने पर उकसाते हैं, एक तो ये। और फूल खान साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि इसके जिम्मेदार वालिदैन हैं। और बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेगम सैयद हैं जो कह रही हैं कि बहुत खूब आप बजा फरमा रहे हैं। सुंबल साहिबा ने कहा है कि आप बजा फरमा रहे हैं। आयशा सुमन साहिबा आपके लिए कह रही हैं कि आप ही जैसी शख्सियत के लिए इकबाल साहब ने कहा है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बहुत बहुत शुक्रिया सुंबल साहिबा, आपको दुआएं दे रही हैं। और इसी के साथ साथ ये तमाम सवालात अपने जहन में रखिएगा। और सलीम मोहिउद्दीन साहब ने जिस की तरफ इशारा किया, मेरा अगला सवाल भी यही था कि बच्चों के अदब के फरोग के लिए जो आपने व्हाट्सएप ग्रुप बचपन बनाया हुआ है, उसकी सरगर्मियों के बारे में भी जरूर बताइएगा। और सुंबल साहिबा तो कह रही हैं कि ये सही बात है कि तहजीबें जो हैं वो बदल गई हैं, हमारे इक़्तिदार और जो हमारी सकाफत थी उसमें बहुत गिरावट आई है, हमारे अखलाकियात, ये तमाम निसाब जो हैं इनको इम्प्रूव करना चाहिए। बहरहाल बहुत से आइंदा भी सवाल आते रहेंगे, मैं आपको बताता रहूंगा। लेकिन ये बहुत अच्छा सवाल है कि आप बूढ़ों को बच्चों के अदब पर किस तरह से यानी तैयार करते हैं, लिखवाते कैसे हैं, और फिर ये कि बचपन ग्रुप क्यों बना है, उसके पीछे कौन से मुहरकात हैं, क्या अगराज़ व मकासिद हैं। मैं क्योंकि खुद उस ग्रुप का मेंबर हूँ, मैं चाहता हूँ कि उस पर आप तफसील से हमारे नाजरीन को बताएं कि बचपन कैसे वजूद में आया और इसके पीछे क्या मुहरकात हैं, क्या। आरिफ साहब, आपने ये सवाल किया है कि बचपन ग्रुप, आज अल्हम्दुलिल्लाह बचपन ग्रुप जो आप चूँकि मेंबर हैं उसके, तो आपको भी मालूम है कि बचपन ग्रुप में जो है पूरी दुनिया से लोग जुड़े हुए हैं। और ये मेरा आरिफ साहब, ये मेरे जो दोस्त हैं, तबस्सुम हैं, सलीम मोहिउद्दीन साहब हैं, जो मुझे जानते हैं, मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि भाई आप जी मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि भाई आप जो है अदब आलिया में क्यों नहीं अपने आप को वो करते, बच्चों के अदीब, आप अपने आप को बच्चों का अदीब क्यों कहते हैं। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो मुझसे कहते हैं यार आप जो है वो अपने आप को, इकबाल नियाज़ी साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत बड़ा नाम है इकबाल नियाज़ी। वो मुझे कहते हैं यार सिराज अजीम, तुम अपने आप को जो है अदीबुल अल्फाल कहना छोड़ दो। मैंने कहा साहब, ये इकबाल साहब, ये बात नहीं हो सकती कि मैं अपने आप को बच्चों का अदीब ना कहूँ। मुझे अदब आलिया से उस वक्त तक मतलब है जब तक मैं अपना कुछ जिसे कहते हैं ना कि मेरा एक आपने एक नाम सुना होगा, केमिस्ट्री में एक बड़ी अच्छी चीज इस्तेमाल होती है, बाई प्रोडक्ट। जब मुझे अपना बाई प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में बेचना होता है, कोई अफसानचा है, कोई अफसाना है, तब तो मैं अदब आलिया में कुछ देर के लिए मुतहर्रिक होता हूँ। लेकिन मेरा ओढ़ना, मेरा बिछौना, मेरा सोचना, मेरा खाना, मेरा पीना बच्चों का अदब है। और
میں آپ سے یہ بہت حسرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں آج کے دور کے بچوں کو آپ انگلش پڑھا لیجئے، سب کچھ کر لیجیے، انگلش میڈیم اسکولس میں پڑھا رہے ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو کہ بڑے آپ کے بچے بہت ماڈرن ہیں، میں بھی شامل ہوں، میرے بچے بھی تھرو آؤٹ دونوں بچے، میری بیٹی بھی میرا بیٹا دونوں بچے جو ہے وہ تھرو آؤٹ انگلش میڈیم کے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن گھر کی تہذیب اردو اور اپنے دین کی پہچان ان کو ہے، اور مہذب بھی میں اس بات کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، میرے بچے مہذب بھی ہیں۔ یہ تبسم کا اسکرین پر آ رہا ہے، تبسم جانتی ہیں بہت اچھے طریقے سے، 100% جو ہے یعنی 100% بچے کے بگاڑنے میں والدین کا ہاتھ ہے، اور ساتھ میں کہا ہے کہ آپ بہترین انسان بھی وہ اصل میں بہن ہے، تو بہن جو ہے نا وہ تو بھائی کی تعریف کرے گی، وہ بہن بھائی کی تعریف کرے گی۔ خیر، تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ صاحب یہ جو تربیت کا مجھے یہ لگا، اگر آپ دیکھیں کہ 80 سے لے کے سن 2000 تک ادب اطفال میں سکوت سا رہا، کوئی مطلب اس کے پوچھ نہیں تھی، کوئی اس کو لکھنے والا نہیں تھا، کہیں کتابیں نہیں چھپ رہی تھیں، کہیں کچھ نہیں ہوتا۔ آج الحمدللہ یہ ہے کہ کتابیں بہت خوبصورت چھپ رہی ہیں، رسائل ہیں، اور رسائل بڑی تعداد میں نکل رہے ہیں۔ ایک بمبئی کا ایک رسالہ ہے گل بوٹے، فاروق سید کا گل بوٹے، اس کی اشاعت جو ہے 25,000 ہے، 25,000 اس کی اشاعت ہے۔ ایک جو ہے گورنمنٹ کا رسالہ ہے، NCPL کا رسالہ ہے بچوں کی دنیا، اس کی اشاعت تقریباً مجھے معلوم ہے کہ 60,000 کے قریب اس کی اشاعت ہے آج بہت۔ لیکن یہ چیزیں جو ہے وہ صرف چھپانے تک ہیں، معصوم قاری جو ہے وہ کہیں نہ کہیں گم ہے۔ اس کڑی کو جوڑنے کے لیے جو کڑی جو آپ کے پاس ہے، وہ کڑی جو میرے پاس ہے، اس کے بیچ کا جو معاملہ ہے، جو اس میں جو وائڈ ہے، جو اس میں اسپیس ہے، جو اس میں خلا ہے، اس خلا کو پورا کرنے کے لیے میں نے بچپن گروپ تشکیل کیا۔ بچپن گروپ سے پہلے میں نے ایک آل انڈیا ادب اطفال سوسائٹی بنائی تھی، جس کے تحت میں نے انٹرنیشنل اور نیشنل سیمینار کرائے، اور میں نے کئی انٹرویو میں اپنے کہا بھی، اور مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے عارف آپ سے بات کرتے ہوئے، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے، اور میں آپ کو اس کے لیے میں آپ کا کہنا چاہیے کہ شکریہ کیا کہوں گا، میں آپ کو کہوں گا میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ وجہ نہیں میں اس کی وجہ میرے احسان کی نہیں، احسان کی بات میں نے احسان والی بات کیوں کہی؟ میرا اپنے جو میرے جتنی بھی ادب اطفال کی جتنی بھی فریٹرنیٹی ہے، جتنے بھی میرے ادیب الاطفال ہیں، جتنے بھی ادب اطفال کے شعراء ہیں، یہ میرا ہمیشہ سے یہ رہا۔ مجھے پتہ نہیں کیوں یہ خاص طور سے ہمارے برصغیر ہندوستان، پاکستان اور ان جگہوں پر جو ہے بچوں کے ادیبوں کو تھرڈ کلاس سمجھا جاتا تھا۔ مجھے شروع سے اس بات سے بڑی چڑ تھی، بڑا مجھے ہوتا، تو مجھے یہ تھا کہ میں اپنے جو میرے ادب اطفال کے جو لوگ ہیں، جو ادیب ہیں، ان کو ایک دن وہ مقام دلاؤں گا انشاءاللہ تعالی کہ جو ان کو جو پروفیسران اور جو ادب عالیہ کے جو لوگ ہیں، بالکل ان کے برابر کا میں مقام دلانا چاہتا ہوں اپنے ادیب الاطفال کو۔ اس نیت سے اس نیت سے میں نے بچپن گروپ بنایا۔ پھر ایک نیت میری یہ تھی کہ یہ جو ادب اطفال جو مٹ گیا سمجھ لیے، 80 کے بعد سے لے کے 2000 تک بالکل سکوت تھا، اس میں کوئی تھا نہیں، تو اس کو مجھے پھر سے دوبارہ سے ریوائیو کرنا ہے، اس کی بازیافت کرنا ہے، مجھے گھر گھر پہنچانا ہے ادب اطفال۔ آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں سنبل صاحبہ ہیں، پھول صاحبہ ہیں، ترنم ہیں، تبسم ہیں، اور بہت سی خواتین ہیں۔ پھول خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری والدہ مرحومہ
شمع، ہدا، پاکیزہ آنچل جیسے ادبی رسائل منگواتی تھی. انہی رسالوں کو پڑھ کے میں نے اردو کو سیکھا ہے اور اردو کا شوق ہوا ہے اور صحافت کی جانب جو ہے قدم بڑھائے ہیں. انہی کے ساتھ یہ ہیں ترنم شبنم صاحبہ، وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ بچپن گروپ کے لیے نیک خواہشات ہیں. اور سلیم محی الدین صاحب کا کہنا بجا ہے کہ بچوں کے ادیب کو آپ جیسا ہی معصوم ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ایسا ہے نہیں. جی سلیم محی الدین صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں، میرے اس قدر گرویدہ ہیں سلیم محی الدین صاحب. حالانکہ میں ان کے کہنا چاہیے کہ اپنے آپ کو بہت کمتر سمجھتا ہوں میں اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں. وہ بھائی بہت پڑھی لکھی شخصیت ہے، میں تو پیدل چلنے والا آدمی ہوں اور معمولی انسان ہوں، بچوں کا ادیب ہوں. میں یہ بھی نہیں کہتا اپنے آپ کو کہ میں بہت بڑا ادیب ہوں یا بہت بڑی کوئی شخصیت ہوں. یہ تو آپ خام خواہ کی ایک بات کر رہے ہیں، لیکن وہ بیچ میں ایک بات رہ گئی کہ جو آپ کو جو میں احسان کی بات کہہ رہا تھا، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ سراج عظیم کے علاوہ سراج عظیم کو خوشی جب ہوگی، سراج عظیم اپنے آپ کو کامیاب جب سمجھے گا جب آپ اپنے اس پروگرام کے اندر، میں آپ سے 3 بار کہہ رہا ہوں، اپنے اس پروگرام کے اندر بچوں کے ادیبوں کو، شاعروں کو آپ بلائیں گے. میری سب سے بڑی کامیابی ہوگی. اور میں آپ کا یہ احسان، آپ نے مجھے میرا انٹرویو کیا، ہم مجھے سے بلایا، میں آپ کا یہ احسان، یہ عارف صاحب ان کے نام ان کے نمبر دیجیے واٹس ایپ پر. میں وعدہ رہا بہت جلد ان سے ہم روبرو ہوں گے، گفتگو کریں گے. اور ادب عارف اتفاق پہ میں بہت عارف آپ کو قطع کلام میں آپ کو قطع کلام، میں آپ کا احسان، میری بات جو ہے بھی، میں آپ کا احسان مند اس وجہ سے رہوں گا کہ یہ ایک پلیٹ فارم مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جہاں پر بچوں کے ادیب جو ہیں وہ پوری دنیا میں جانے جا سکتے ہیں. اور یہ نہ صرف کہ میرے پر احسان ہوگا، یہ آپ کا ہم احسان حاضر ہیں. ادب اطفال آپ کا یہ احسان کبھی بھولے گا نہیں. آپ کا نام جو ہے سنہری حرفوں میں لکھا جائے گا جس وقت بھی ادب اطفال کی تاریخ لکھی جائے گی کہ عارف نے جو ہے ضرور انشاءاللہ. یہ عہد ہے ہمارا، یہ وعدہ ہے. اور بہت اچھی بات حبیب ندیم صاحب نے کہی ہے کہ ہمیں قارئین کی طرف جو ہے توجہ دینی چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس قارئین جو ہے بہت کم ہیں. اور آپ کی انہوں نے کہا ہے کہ درست فرمایا محترم سراج صاحب کہ ہمیں اپنے جو بچوں کا ادب ہے بالخصوص اس کے حوالے سے محنت کرنی چاہیے. چشمہ فاروقی صاحبہ کا ہم نام لے رہے تھے تو وہ حاضر ہو گئی ہیں، سلام کہہ رہی ہیں. چشمہ خوش رہو. چشمہ میری چھوٹی بہن ہے اور یہ خاتون مشرق کی ایڈیٹر بھی ہے. یہ تو ایسا خانوادہ ہے. اصل میں آپ کو بتاؤں کہ اس خانوادے کا ہندوستان اور پاکستان سب کو بہت زیادہ مشکور رہنا چاہیے کہ یہ خانوادے نے جتنی خدمت کی ہے اور عورتوں کے اندر خاتون مشرق نے جتنا بڑا کام کیا ہے وہ شاید کسی اور رسالے نے نہیں کیا. بے شک. آج ناظرین کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم نے خاتون مشرق پڑھا، ہم نے آنچل پڑھا، ہم پاکیزہ آنچل پڑھا. یہ بہت سے نام اوپر آپ نے دیکھے ہوں گے جو میں نے پڑھے ہیں. لوگ آج بھی مانتے ہیں کہ خاتون مشرق ہو یا جو ہمارے جتنے بھی مشرقی خاتون پاکیزہ آنچل، اس طرح کے ہدا کا بھی بار بار ذکر آیا اور بہت سے ایسے رسائی تھے جو گھر گھر آیا کرتے تھے، ہمارے بزرگ پڑھا کرتے تھے. آج تو ہمارے ٹیبلوں پر نہ جانے کون سے میگزینز ہیں، فیشن میگزینز ہوں گے، آؤٹ لکس ہوں گی، کچھ اور بھی ہوں گے، بہرحال نام لینا ہم کیا کہیں. لیکن ادب کا میگزین کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آتا ہے. اس بیچ میں صوفیہ شیرین صاحبہ آپ کو کہہ رہی ہیں کہ ماشاءاللہ آپ درست فرما رہے ہیں. شکریہ صوفیہ شیرین صاحبہ. چشمہ فاروقی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آپ زندہ باد. تو بہرحال یہ باتیں ہوتی رہیں گی. ادب اتفاق کیونکہ یقیناً ایک مشکل کڑی مانی جاتی ہے اس وقت کہ بزرگوں سے ہم بچوں کے بارے میں لکھوائیں، اور پھر وہ ماہر نفسیات بھی ہونے چاہیے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں. آج والدین ہی بچوں کے بگڑنے کا ایک سبب بن رہے ہیں. ہمارے یہاں کا فیشن، یہ دنیا جو ہے فیشن کدہ بن چکی ہے. اس میں ہر چیز جو ہے دکھاوے کی ہو گئی ہے. یہاں ادب، تہذیب، ثقافت، اخلاق یہ چیزیں ناپید ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ عنقا ہو گیا ہے. بالکل یہ جو
खनका हो गया है, इसको कैसे आपने हकीकी दुनिया में जमीनी सतह पे दिखाया है जो आप कर रहे हैं, वो चाहे बचपन के हवाले से हो या दीगर जो आपने तहरीरें पेश की हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इस बीच में कुछ अपने खूबसूरत अशार भी पेश करें, अपनी भाई जो ये पता नहीं, मुझे नहीं, आरिफ साहब ये पता नहीं आपको किसने बता दिया कि मैं शायर हूँ। मैं शायर नहीं हूँ भाई, मैं शायर बाप का बेटा हूँ, लेकिन मुझे आज तक कोई शेर मुझे याद नहीं। बस अपने वालिद का एक शेर सुनाई देता हूँ, उससे मेरी पूरी पूरी शख्सियत आपको पता चल जाएगी। मेरे वालिद का शेर है जो मुझे बहुत पसंद है। मैं अपने प्रोफेसर हनीफ कैफी साहब का, मेरे वालिद का शेर है, हर्फ हक। मैं इसको जो पूरा जो हमारे अदब का जो सिनारियो है, अदब का जो सिनारियो है उसके तनाजुर में मैं ये बात कह रहा हूँ। अपने वालिद का शेर मैं कोट कर रहा हूँ। हर्फ हक हर्फ गलत, हर्फ हक हर्फ गलत करने को आए पत्थर, हर्फ हक हर्फ गलत करने को आए पत्थर। मैंने हर दौर में सच बोल के खाए पत्थर। वाह वाह वाह, मैंने सच बोल के खाए, क्या बात। ये शायद ये अलमिया है हमारा भी, हमारे अदब का भी, बच्चों के अदब का, हमारी तहजीब का, हमारा अपना, हमारे तशख़्ख़ुस का ये अलमिया कि हम अगर आरिफ अगर हमारे मुंह पर हमारी सच्चाई बयान कर देता है या हमें किसी सच्चाई के लिए टोक देता है, तो उसको सिवाय जूतों और पत्थर के अलावा कुछ नहीं मिलता उसको। ये नहीं सोचता वो शख्स कि ये आरिफ जो है ये हमदर्द है, आरिफ जो है ये आपके लिए, आपकी बेहतरी के लिए कह रहा है। आज लोगों ने इस चीज़ को ये समझ लिया है कि आज कोई भी नसीहत है, कोई अपनी जो भी कहना चाहिए कि तहजीब है, वो तहजीब जो वो तहजीबें जो चमक धमक वाली हैं, और जो उर्दू अदब की जो तहजीब है, उससे बड़ा फ़र्क। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं अल्लाह से तौबा करके कहता हूँ आपको। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद प्रोफेसर जामिया में हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, हिंदुस्तान पाकिस्तान। मेरे घर में जितने भी बड़े बड़े अदबा शोरा हैं, वो सब मेरे यहाँ मेरी वालदा के हाथ का पकाया हुआ खाना खा के गए हैं। चाहे वो पाकिस्तान के जमील जालबी साहब हों, चाहे वो आपको मालूम है गोपी चंद नारंग साहब हों, और चाहे आपके कश्मीर के वो हामिदी कश्मीरी साहब, मेरे वालिद के बहुत अच्छे दोस्त। मतलब कहने का मकसद ये कि उन लोगों से जो तहजीब जो सीखी है, जो कुछ किया है, जो हमारी तहजीब, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि हमारी तहजीब जो है वो गुम होती जा रही है। हम अपने मफादात के अंदर पड़े हुए हैं, अपने सिर्फ अपने आप को चमकाने के लिए अपनी टोपियाँ चमका कर इन सब चीज़ों से उर्दू का कुछ भी भला है। मैं एक कनाडा के एक वह हैं, बच्चों के राइटर हैं बहुत बड़े, प्रोफेसर इदरीस सिद्दीकी साहब। जब मैं उनको अब से 2 साल पहले यहाँ इंडिया बुलाया उनको, वो आए कनाडा से, मेरे यहाँ सेमिनार में आए। फिर मैंने सेमिनार जलगांव में कराया, उनका सेमिनार बॉम्बे में कराया। तबस्सुम उसमें शामिल थी, बल्कि तबस्सुम ने ही कराया था वो सेमिनार। तो जब इदरीस सिद्दीकी साहब वापस जाने लगे कनाडा, तो जिस दिन वो जा रहे थे, जिस दिन उनकी फ्लाइट थी, उससे 1 रोज पहले वो मेरे घर पर ठहरे हुए थे। मुझसे बोले कि सराज साहब एक बात आपसे पूछता हूँ। मैं कहा जी इदरीस साहब पूछिए। बोले मुझे आप ये बताइए कि आप भी बच्चों के अदीब हैं और आप जो है अपने आप को पीछे रखकर लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इसका मतलब नहीं समझा कुछ।
اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ ادریس صاحب، میرے لیے یہی سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں ادب اطفال کے جو لوگ ہیں، جو ادباء شعراء ہیں، میں جھوٹ اور مکر و فریب والی بات نہیں کرتا. میرے جو اپنے ادیب الاطفال جو لوگ ہیں، میں ان کو اتنا آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ جو ہے یہ ادیب الاطفال ہے. ان کا بھی جو ہے کسی کانفرنس میں ہونا ضروری ہے، ان کی بھی صدارت کسی کانفرنس میں ضروری ہے. اور آپ کو الحمدللہ میں بتاؤں تو اس سلسلے میں میں اتنا کامیاب ہوا کہ جب این سی پی ایل کی طرف سے جب کہنا چاہیے کہ عالمی سیمینار ہوتے ہیں وہاں ہر سال، تو پچھلے سال پہلی بار شفیع ایوب اس کو کنڈکٹ کر رہے تھے. تب انہوں نے 3 بچوں کے ادیب تھے ہندوستان کے، ان کا نام لیا. اس کانفرنس میں، اشوکا ہوٹل کی عالمی کانفرنس میں، ایک گل بوٹے کے ایڈیٹر فاروق سید، دوسرے رونق جمال، تیسرے یہ خاکسار جس کا نام میں نے اسی وقت شفیع ایوب کو جو ہے میں نے مبارکباد دی کہ شفیع ایوب، آج مجھے ایک حوصلہ ملا ہے کہ ادب اطفال کی گونج شاید کہیں ہوئی. تو میرا تو مقصد یہ ہے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں دیکھیے سن 78 سے میں لکھ رہا ہوں، لیکن مجھے کوئی جانتا نہیں. یہ تو ابھی 1-2 سال کے اندر، جب سے میں نے یہ آل انڈیا ادب اطفال سوسائٹی بنائی ہے، تب لوگ جاننے لگے. اب یہ ہوا ہے کہ 4-5-6 مہینے سے جو ہے بچپن گروپ جو بنایا ہے، تو اس میں یہ ہوا ہے کہ بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے. بہت خواہشات بھی ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں، ترنم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ بچپن گروپ کے تحت جو ہے ورکشاپ ہونی چاہیے، اور سلیم محی الدین صاحب کہہ رہے ہیں کہ بچپن کی شاخیں جو ہیں وہ وسیع کرنی چاہیے اور ادب اطفال کو بھی بڑھاوا دینا چاہیے. اور اس طرح سے بہت سی کمنٹس آپ نے پڑھے ہوں گے کہ ادب اطفال کے ادیبوں، سلیم صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ ادب اطفال کے ادیبوں کا ورکشاپ ہو. ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے سوسائٹی قائم کی جائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہے کہ جی میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں کہ بچپن گروپ کے جانب سے ورکشاپ ہونا چاہیے. اور صوفیہ شیرین صاحبہ کہتی ہیں کہ بے شک ہم سبوں نے پہلے اسی طرح کے رسائل پڑھے ہیں، لیکن آج وہ بہت کم نظروں میں آ رہے ہیں، بلکہ لکھے ہی نہیں جا رہے ہیں. بچوں کا ادیب ہی تو مستقبل کا ادیب ہے، یہ پھول خان صاحب کا ماننا ہے. اس بیچ میں آپ نے گل بوٹے کا ذکر کیا، رونق جمال صاحب کا ذکر کیا. آپ تو آج ہمارے سامنے ہیں ہی ہیں. ادریس صدیقی صاحب کا کینیڈا سے جو ہیں آپ کے دوست، ان کا ذکر کیا. تو میں چاہوں گا کہ آپ کی وساطت سے ہی ان کو ہم بہت جلد یہاں حاضر کریں گے، کیونکہ یہ سب بہت ادب شکریہ اطفال سے جڑے ہیں. حارث صاحب، آپ کا بہت شکریہ اس سلسلے میں. ہمیں اچھا لگے گا، اور ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کیونکہ بچوں کی نفسیات، بچے ہوتے ہی ایک تو ضدی ہیں، اور پھر بچوں کو پڑھانے کا عمل تو یہ واقعی بہت مشکل ہے. بڑے بچوں کو، کالج کے بچوں کو پڑھانا آسان ہے، جو ہم نے کہہ دیا تو وہی ہم مطلب سنے نہ سنے. لیکن چونکہ بچوں کے ادب کو لکھنا اور بچوں کی نفسیات کو سامنے رکھنا، دو الگ الگ سے کچھ مرحلے ہیں. ان کو آپ جوڑ کے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بچے ہمارے بھی ہیں، ہمارے سماج کے بہت سے کچھ ضدی، الہڑ، گوار، ذہین، شرارتی، اور اس طرح کے بچے. اور پھر جب ان کا ادب لکھا جائے، یعنی ایسا آفاقی ادب لکھا جائے کہ جو وہ ہر ایک بچہ جو ہے وہ پڑھے تو اس کو کچھ تہذیب آئے. یہ عمل ایک ساتھ آپ کیسے کر کے پیش کرتے ہیں، اس پہ بھی تھوڑا سا وضاحت کریں، کیونکہ بچوں کا واقعی بہت سینسٹیو ہے. لوگ کہتے ہیں کہ والدین ہی ذمہ دار ہیں ان کے بگاڑنے میں، لیکن بچہ ہی جب ایسی حرکتیں کرتا ہے، ہم اس کے خوش رہنے کو کبھی کہتے ہیں چلو تجھے پیزا ہی دے دیں، تمہیں خوش رہنے کے لیے چلو تمہیں ہم موبائل ہی دے دیں، تم خوش رہو تمہیں یہ کر لیں. تو ایسے میں ہمیں کیا چیز اس کے ہاتھ میں تھمانی چاہیے کہ وہ اس ادب کی طرف جڑے؟ دیکھیے عارف صاحب، آپ نے
یہ بہت اہم سوال کیا ہے، اور اصل میں دیکھا جائے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ بچے کے اوپر، میں اب ایک بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، بچے کے ادب کے اوپر تہذیب ٹکی ہوئی ہے۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں میری بات سنی بہت غور سے۔ بہت بڑی بات ہے یہ، بچوں تہذیب کی ہے۔ بچوں کے ادب پر تہذیب ٹکی ہوئی ہے، کسی بھی سماج کی، کسی بھی سماج کی تہذیب بچوں کے ادب کے اوپر ٹکی ہوئی ہے۔ بچوں کا ادب یہ نہیں کہ جو آپ لکھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا کچھ، بچوں کا ادب، بچوں کی تہذیب۔ میرے دادا اللہ بخشے کہتے تھے کہ اگر کسی کے گھر کی تہذیب دیکھنا ہو، مجھے بڑا عجیب ہوتی یہ ان پڑھ لوگ اس قدر تجربے کار تھے، اور انہوں نے کیسی باتیں کہیں۔ میرے دادا اللہ بخشے کہتے تھے کہ اگر تین باتیں کہیں انہوں نے کہ اگر کسی کے گھر کی تہذیب دیکھنا ہے تو اس کے بچوں کو دیکھو۔ واہ کیا بات ہے، واہ۔ کسی کی کاروبار کو دیکھنا، کسی کے کاروبار کو دیکھنا ہے تو اس کی بیٹھک دیکھو، اور کسی کے گھر کا ذائقہ دیکھنا ہو تو اس کا دسترخوان دیکھو۔ واہ کیا بات، کیا بات، واہ۔ یہ تینوں چیزیں آپ کی تہذیب بتاتی ہیں۔ یہ تینوں چیزیں آپ کی تہذیب بتاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ جو ہے وہ اس کو الگ کریں، اس سے کریں۔ اب آپ نے بچوں کی بات کہی، بچوں کی تہذیب کا دیکھیے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ کو بچوں کا ادب لکھنے کے لیے یا بچوں کی بات کرنے کے لیے، ایک تو یہ ہے کہ بچوں کی آپ کو باتیں آنا چاہیے۔ میری بھتیجی ہے، میرے بھتیجے ہیں، اور میرے بھانجی بھانجا ہیں، اور میرے اور بہت سے یہ اسکول کے، اب وہ مجھے یاد ہے، میں دو شخصیت کا ذکر کرتا ہوں، ایک پنڈت جواہر لال نہرو کا اور ایک ڈاکٹر ذاکر حسین کا۔ پنڈت جواہر لال نہرو بچوں کے بیچ میں ہوتے تھے تو وہ کبھی کھیلتے ہوتے تو جیسے سنجے گاندھی اور راجیو گاندھی یا دوسرے اور جو بچے آتے تھے، یا وہ 14 نومبر کو جو اپنا وہ برتھ ڈے مناتے تھے اس میں ہوتے تھے، تو اس میں بچوں کو بلاتے تھے بہت سے، تو ان کے بنگلے میں جب آتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، پنڈت جواہر لال نہرو کیا ہوتا تھا کہ یہ مجھے بتایا گیا ہے، میں نے کہ انہوں نے وہ وہاں سے اپنے لان سے مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھا کے بچوں کو مار دی۔ اب وہ بچہ اس کا کیا ریئیکشن دے رہا ہے، بچہ کیا ریئیکشن دے رہا ہے، وہ ریئیکشن دیکھنے والی چیز اصلی۔ آپ وہ چیز جو بچہ کرتا ہے آپ اس کو کر کے دکھائیے، اس کے بعد آپ کو ریئیکشن کیا ملتا ہے بچے کا، وہ بچے کی پسند ہے، بچے کی پسند وہ پسند ہے۔ اس طریقے سے اگر وہ آپ کے اندر ہے، آپ کا بچہ عارف کا بچہ عارف کے اندر کا زندہ ہے، تب عارف کچھ لکھ سکتا ہے بچوں کے لیے، تب وہ بچوں کی زبان سمجھ سکتا ہے۔ ورنہ اگر عارف جو ہے بڑا ہو گیا ہے، عارف جو ہے وہ قابل ہو گیا ہے، عارف جو ہے سماج کا بہت بڑا آدمی بن گیا ہے، اور وہ اس نظر سے دیکھتا ہے بچوں کو، تو بچے سوائے بگڑنے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ میں آپ کو تھم رول بتا رہا ہوں، آپ کو یہ میں آپ کو تھم رول بتا رہا ہوں۔ عارف کے اندر کا بچہ، لیکن وہ بچہ جو عارف کے اندر کا بچہ ہے، بچوں کی زبان میں بچوں کو بتاتے ہوئے تہذیب کے اس افق پہ لے جائے کہ جس کی خوبصورتی نظر آئے اس بچے کو،
वो जो है बच्चों का अदब है, वो बचपन के लिए लिखना है। और आप अगर ये कहें कि वैसा वो लिख दिया, क्या लिख रहे हैं आजकल तो लिखने को बहुत से लोग बहुत पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं, क्या क्या लिख लिख के पता है, उनको पता ही नहीं कि बच्चे की साइकोलॉजी क्या है, उनको मालूम ही नहीं कि बच्चे की ज़रूरत क्या है, उनको ये नहीं मालूम कि आज के असर हाजिर में क्या क्या हमें देना चाहिए बच्चों को, क्या नहीं। आज हम जो है, अगर आप ये कहें कि सिर्फ किताबें ही पढ़ ले बच्चा, तो किताबें नहीं पढ़ सकते, लेकिन किताबों से रिलेटेड जो स्टोरीज हैं वो अगर आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं और फिर आप उसको किताब थमा रहे हैं, तब वो जो है वो बच्चा ज़रूर इंटरेस्ट से पढ़ेगा। इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल जो है, सबसे बड़ी, आपको जानते हैं कि हैरी पॉटर जो मशहूर हुई वो किस वजह से मशहूर हुई? हैरी पॉटर जो मशहूर हुई वो इस वजह से नहीं मशहूर हुई कि वो उसकी जो आज लाखों कापी जो दुनिया के अंदर बिकी हैं। आज वो दुनिया की सबसे अमीर राइटर है रॉलिंग, सबसे अमीर राइटर। आप जानते हैं उसकी वजह क्या है? उसका सबसे बड़ी वजह यह है कि उसने आजकल के दौर के हिसाब से उसने मंजर निगारी की। उस मंजर निगारी को उसने, वो मीडिया जो आज सबसे अहम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से में उसकी फिल्में आ गई। अब जब वो फिल्म आ गई तो फिर आप ये समझ लीजिए कि वो बच्चा जो है वो यकीनन, क्योंकि उसको वो जानता है कि जो ये चीज़ें आई हैं वो उसमें किताब में ज़्यादा होंगी। अब मोटी मोटी किताबें, अब वो फिल्म आई, अब फिल्म आने के बाद फौरन ही जो है हैरी पॉटर की एक वॉल्यूम जो है वो लॉन्च हो गया। अब वो जो लॉन्च हुआ तो सब वो हाथों हाथ बिक गया। हमारे यहाँ उर्दू अदब में, बच्चों के अदब में, हमें नई टेक्निक के साथ हमें बच्चों के अदब को बच्चों तक पहुंचाना पड़ेगा। वरना अगर आप ये चाहें कि सिर्फ किताबों से पहुंच जाए, अखबारों से पहुंच जाए, मास्टर के पढ़ाने पहुंच जाए, या वो डंडा मारने से पहुंच जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस तरह के ये सब अब चीज़ें, जब तक हम अपने आप को कहना चाहिए कि रिनोवेट नहीं करेंगे, हम हर चीज़ के लिए अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, हम ज़माने के असरात को कबूल करते हुए अपनी तहजीब को बरकरार रखें। देखिए, अगर आपने अपने जड़ों को छोड़ दिया, आप अपनी जड़ों को भूल गए, तब तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तब वो उस जड़ को, उस पेड़ को गिरना ही गिरना है। लेकिन अगर वो आपने मिट्टी का ध्यान रखा, आपने मौसम का ध्यान रखा, आपने ये ध्यान रखा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, जड़ों का ध्यान रखा, अपनी जड़ों को के साथ रहते हुए आपने अगर अपने जो है पौधे को बढ़ाया उसकी जड़ों के साथ, तब तो वो कामयाब है। वरना फिर बड़ा मुश्किल है। वो जो आज की तहजीब आप देख रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के अंदर, इंग्लिश के अंदर हमने पढ़ा तो लिया बच्चों को। मुझे बताइए कि लोग कहते हैं साहब, ये बड़ी बड़ी ऑकवर्ड सी मिसाल देते हैं आप। आज मुझे बताइए कि इंग्लिश में बाप के लिए भी यू है, एक गैर आदमी के लिए भी यू है, एक माँ के लिए भी यू है, एक दादा के लिए भी यू है। इसमें कहीं आपको तहजीब नजर आती है? आपको मुझे बताइए, मुझे इसको मतलब बिल्कुल इसको लॉजिकली देखिए। मैं अपनी उर्दू तहजीब की मैं दिल से कदर करता हूँ, और उसकी जो है, मैं आपको बता दूं कि अपने उर्दू तहजीब की मैं शद्दोमत के साथ कहता हूँ कि उर्दू जैसी महज़्ज़ब ज़बान आप मुझे दिखा दीजिए। मुझे अंग्रेज़ी को, आप इवन फ्रेंच को कहते हैं कि फ्रेंच ज़बान जो है बड़ी है, फ्रेंच ज़बान में भी जो है वो आपके अलग अलग से नहीं बोले। मैं आपको जो है आप करके बुलाता हूँ, अपने वालिद साहब को जो है वालिद मोहतरम कह के बुलाता हूँ, अपनी वालिदा को वालदा कह के बुलाता हूँ। आप तशरीफ रखिए, आप यहाँ आए, आपका बहुत शुक्रिया। ये तहजीब के अल्फाज, और
इस मामले में मुझे पता नहीं, आप कहेंगे हो सकता है कि मुझे या तो मेरे पर इल्ज़ाम लगा दीजिए या मेरे पर ठप्पा लगा दीजिए, लेकिन मेरी अपनी उर्दू की तहजीब मैंने तो कहीं देखी। मैं जहाँ अंग्रेजी बोलता हूँ वहाँ जानबूझ के जहाँ इंग्लिश सोसाइटी होती, इंग्लिश सोसाइटी की बात कर रहा हूँ मैं, इंग्लिश सोसाइटी जहाँ गिटपिट जो हमारे हम लोग कहेंगे जिसको गिटपिट करते हैं, सोसाइटी का उस गिटपिट है कि में भी वही ज़हीन माना जाता है जो अंग्रेजी के 4-5 जुमले अदा कर जाए महफिल में बैठे हुए, तो वाह वाह यार, ये तो बहुत भराते से जी जी इंग्लिश। इस बीच में मैं आपको बताऊं इंग्लिश और उर्दू की, क्योंकि उर्दू जाहिर सी बात है हम भी पढ़ते आए हैं कि उर्दू तहजीब, बस उर्दू जी जुबान तो है ही है, जुबान के साथ एक तहजीब भी है। अहमद फिरदौस साहब भी कह रहे हैं कि आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। आयशा सुमन साहिबा कह रही हैं बिल्कुल दुरुस्त है। ताज खान साहब हैं जो कह रहे हैं कि बिल्कुल नए दौर में नई बातें नए अंदाज से कहने का आपका ये फन बहुत अच्छा लगा। शाहताज खान साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम मोहिद्दीन साहब लगातार हमारी हौसला अफजाई करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं कि बेहद मुफीद और चश्मकुशा गुफ्तगू हो रही है तहरीक का, और इस नाचीज का भी शुक्रिया अदा किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। अताउल्ला खान साहब कह रहे हैं कि बच्चों की तरबियत बहुत जरूरी है। तारिफ साहब हमारे स्कॉलर हैं, शायद वो कह रहे हैं कि उम्दा सिलसिला है जिसका फायदा स्कॉलर उठा रहे हैं, आपकी काविशों को लंबा सलाम। बहरहाल रशीद खान साहब हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान से, वो देख रहे हैं कि बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है। तो कुल मिला के तरन्नुम साहिबा के भी कुछ और कमेंट्स हैं जिनमें उन्होंने लिखा है कि बहुत दुरुस्त के हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। ये तमाम तर सिलसिले बने रहेंगे। फूल साहब का आखिरी जो ये है कि उन्होंने लिखा है कि अंग्रेजी तहजीब तो मोम और डैड के अगर खत्म होती है, जाहिर सी बात है। सगीर कुरैशी साहब हमें सऊदी अरब से सुन रहे हैं, वो भी आपको सलाम कह रहे हैं। तरन्नुम साहिबा का एक सवाल है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, स्क्रीन पे आप भी देख लीजिएगा। एक सवाल कि आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में बच्चों में मासूमियत होती जा रही है। आज का बच्चा बहुत हसास है, क्या ख्याल है? हसास तो हसास तो हर वक्त होता है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि, और इसको मैं बराबर मैंने कई सेमिनार्स में भी कहा है, मैंने अपने कई मकालों में भी लिखा है कि जब से हम दुनिया की तहजीब को जानते हैं जो रिकॉर्डेड है, और वो रिकॉर्डेड तहजीब जो है वो तकरीबन 2500 साल की है, उस 2500 साल के दौरानिए में आज के दौर का बच्चा जितना ज़हीन, इंटेलिजेंट और जितना हसास है वो शायद कभी नहीं था। आज आप उस बच्चे को जो है, मैंने आपको बताया ना, मैं फिर वही अपनी मिसाल पर पहुंचा हूँ कि सिराज अजीम को जो है चांद पर बुढ़िया नजर आती थी, उसके दादा ने, उसकी माँ ने, उसकी नानी ने, उसकी दादी ने सिराज अजीम को जो है वो चांद की बुढ़िया दिखाई थी। लेकिन सिराज अजीम का वो सहर टूट गया जब इंसान ने चांद के ऊपर कदम रखा। अब सिराज अजीम चांद की बुढ़िया को तो जानता है, लेकिन अब जो है सिराज अजीम के पास आपके लिए एक नया सवाल यह है कि चांद के असरार क्या हैं। आदमी चांद पर गया क्यों? आदमी चांद को जानने की, चांद पर जाने की जरूरत क्या थी? ये सवाल है। आज का बच्चा आपसे ये सवालात पूछता है। आज उस बच्चे को आप ये कह के नहीं कह सकते कि बेटा ये जो है वो चांद पर गया था आदमी के। बच्चा ये आपसे ये नहीं पूछता है कि चांद पर, वो उसको मालूम है कि चांद पर गया था, लेकिन व्हाट हैपेंड ओवर देयर विद द मैन, ही वांट्स टू नो कि उसके पीछे क्या था। चांद पर जब आदमी गया, आप उसको अब ये बताना छोड़ दिए कि चांद पर आया, वो उसको मालूम है, उसने पढ़ लिया, उसको जानता है कि चांद पर गया आदमी।
वो आपसे आगे की बात पूछ रहा है कि आदमी जो चांद पर गया, उसका जो पहला कदम पड़ा उसके ऊपर चांद की जमीन पर, तो उसको क्या महसूस हुआ। वो अपना एहसास वहां लेकर गया है, वो अपना एहसास वहां लेकर गया कि वो जो कदम उसका वहां पड़ा चांद की जमीन पर, उस वक्त उसका रिएक्शन क्या था, वो क्या चाहता था, या दुनिया ने उसको कैसे देखा। वहां उसको बढ़िया मिली, जैसे उस वक्त मेरा मेरा सवाल था मैंने कि वहां बढ़िया मिली उसको, बढ़िया नहीं थी। वो एक पथरीली 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 जमीन है जहां पर सांस लेना भी मुश्किल है, जहां पर आपका चलना मुश्किल है। आप उड़ते हैं, क्यों उड़ते हैं? बच्चा आपसे ये जानना चाहता है क्यों उड़ते हैं, चांद पर क्यों उड़ते हैं। बताइए, आपके पास जवाब है किस लिए उड़ते हैं। चांद पर उड़ते इस वजह से हैं, चांद पर हम इस वजह से नहीं चल सकते कि चांद पर जो ग्रेविटी है वो जमीन की 1/6 है। यानी कि अगर यहाँ पर इससे इंसान 120 किलो का जाता है तो वहां जाके वो 20 किलो का रह जाता है। और जब वो एक कदम बढ़ाता है, चूंकि हवा नहीं है, चूंकि वहां कुछ नहीं है, तो आगे आगे उसको पुश करने के लिए पीछे जितना जितना उसका वेट होता है, जितना उसका आगे से वजन होता है, पीछे उसको पुश करने के लिए न्यूटन का ला लगता है। उसको पुश करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, कदम बढ़ाने के लिए उतनी ही फोर्स की जरूरत है जितनी फोर्स की जितनी ग्रेविटी है। क्योंकि वहां पर जो ग्रेविटी है वो 1/6 है जमीन की, इसलिए वहां आदमी जो है कदम बढ़ाता है तो वो उड़ने लगता है। जमीन की ग्रेविटी जो है वो इंसान को बांधे रखती है, इंसान को चलने में मदद करती है। जितना वेट आदमी का आगे लगता है, जितना, अब ये फिजिक्स का एक लॉ है कि आगे जितना उसको फोर्स लगती है, पीछे से उतनी फोर्स वैसी लगती है। आज बच्चा जो है वो कहानियों में आज बात से वो जो है उसका सबसे पहला सवाल है क्यों। आरिफ साहब, सिराज अजीम बच्चों के अदीब हैं, क्यों? Why is a writer of children? What he do for children? What he writes for children? This is the main question. ये वो पूछते हैं बच्चे। आपको बच्चों का जो तजस्सुस है, एक वो तजस्सुस था सिराज अजीम का कि वो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखता था कि रॉकेट दिख जाए। आज बच्चा उस मैग्नीफाइंग ग्लास से बहुत आगे निकल गया है, बहुत आगे निकल गया है। आज उसकी मासूमियत उससे कहीं ज्यादा आगे निकल गई है। आज बच्चे को ये जो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो जमाने की जो तरक्की है, उस बच्चे को आज वो सब कुछ सिखा दिया है जो बच्चा, उस वक्त का बच्चा, मेरे जमाने का बच्चा जो नहीं जानता था, आज वो सब कुछ जानता है। अब वो आपसे उससे आगे का सवाल करता है क्यों। एवरी टाइम ही आस्क यू क्यों, क्या है। और अगर आपने आज के बच्चे को उस क्या क्यों इसको अगर आपने सेटिस्फाई कर दिया, तब आप जो हैं कामयाब बच्चों के राइटर हैं। नहीं तो मैं समझता हूं कि बच्चों का राइटर होना बहुत मुश्किल है। सलीमुद्दीन साहब ने सवाल किया है कि आप बच्चों को, बुजुर्गों को बच्चों के लिए लिखने के लिए कैसे उभारते हैं, कैसे उनको पुशअप करते हैं। सलीमुद्दीन साहब जो है मेरे बचपन ग्रुप पर हैं। जब भी इनको होता है मैं हमेशा इनसे कहता हूँ कि सलीम साहब आप शायर, बहुत बड़े शायर हैं, लेकिन अगर आप बच्चों के लिए कुछ नहीं लिखते तो हमारे लिए कुछ नहीं है। ऐसे ही बोल देता हूँ। सलीम साहब मुझसे नाराज शायद होते होंगे, इस वक्त शायद मुस्कुरा भी रहे होंगे, मैं जानता हूँ। मैं और लिख भी रहे हैं। अभी उन्होंने एक ताजा सवाल पूछ किया है, बच्चा अदीब तलाश करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? बच्चा अदीब तलाश करने,
मैं तो बच्चों को लिखवा रहा हूँ, बच्चों से मैं बच्चों को मोटिवेट करता हूँ। आपने आप ही देखा है, इसमें आपको देख रहा है एक बच्चा देख रहा है, उसैद अशर, उसकी 2 किताबें आ चुकी हैं। और वो अभी हमारी एक और इसमें एक राइटर हैं शाहताज, आपको सुनकर हैरत होगी। और ये एक रिकॉर्ड है। शाहताज खान पूना में रहती हैं और टीवी की वो एंकर हैं, मतलब टीवी की प्रोड्यूसर हैं और टीवी के प्रोग्राम्स बनाती हैं। शाहताज को मैंने अपने साथ जोड़ा। शाहताज को ने जब मेरे साथ जुड़ी तो 1 महीने तक शाहताज जो है वो देखती रही। बचपन ग्रुप पे बच्चों की तख्लीकात आ रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। उसके बाद मैंने शाहताज से कहा तुम लिखो शाहताज। टू योर सरप्राइज आज शाहताज साइंस की बेहतरीन कहानी लिख रही है। आई प्राउड ऑफ हिम, प्राउड ऑफ हर, प्राउड ऑफ हर। तो बच्चों शाहताज ये जो लिखे हुए जो जो आपको बच्चों पे लिखा हुआ अदब मिल रहा है, तो क्या इसके लिए कुछ आप भी एहतमाम कर रहे हैं? कोई रिसाला या कोई अखबार या कोई इस तरह की कोशिश आपकी तरफ से भी है, या कहाँ से छपवाते हैं जो अदीब आप तक पहुंचते हैं, शायर आप तक पहुंचते हैं? जी नहीं, मैं आपको बताऊं आरिफ साहब कि जिन लोगों को मैंने मोटिवेट किया है, जिन लोगों से लिखवाया है, अभी एक इसमें आयशा शेख समन इसके अंदर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वो प्रोफेसर हैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी के अंदर, उर्दू की प्रोफेसर हैं और बहुत अच्छी शायरा है। मैं बहुत दिन से उनसे कह रहा था कि आप जो है वो बच्चों के लिए लिखिए, बच्चों के लिए लिखिए। तो कहती थी कि अरे सर मुझे क्या लिखना आता है, मैंने कहा नहीं आप लिखिए, जब आप बड़ों के लिए लिख सकती हैं तो बच्चों के लिए। खैर उन्होंने कोशिश की, लिखी, कुछ नज़में लिखी, कहानी उन्होंने लिखी। उन्होंने अभी एक कहानी बचपन पर भेजी ज़मीर। अब जिन जिन लोगों की कहानी आती है, आप हमारे बहुत अच्छे दोस्त जान मोहम्मद साहब जुड़े हुए हैं, लाजवाल के एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं और हमारे बड़े करम फरमा हैं, हम उनके बहुत मशकूर हैं और हम आपके तवज्जुह से उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और उनको हम सलाम करते हैं उनको। और अदब अतफ़ाल की तरफ से उनको मैं अदब अतफ़ाल का अदीब होने के नाते अदब अतफ़ाल की तरफ से उनको एक बहुत बड़ा सा सलाम करता हूँ कि अदब अतफ़ाल में उनका जो है नाम हमेशा लिया जाएगा कि सिराज अज़ीम के कहने पर उन्होंने लाजवाल में बाकायदा बच्चों का एक सफ़ा शुरू किया, जिसमें हम हर हफ्ते हर इतवार को हमारे बचपन पे जिन लोगों की तख्लीकात आती हैं बदल के और आप यकीन मानिए लाजवाल का वो इतना खूबसूरत पेज है बच्चों का, हम आपसे कहेंगे कि उसको पढ़िए। और हमारे कश्मीर के एक प्रोफेसर याकूब साहब हैं, पता नहीं कि इस वक्त वो हैं कि नहीं हैं, क्योंकि याकूब साहब पिछले कई दिनों से बीमार हैं। उन्होंने उन्होंने एक जो है वो शुरू किया है तारीख़ उंदुलस, इसकी इस्लामी तारीख़, उंदुलस की इस्लामी तारीख़। तो वो हर हफ्ते जो है वो उसमें आता है लाजवाल में। बच्चों के लिए उन्होंने इतना, मुझे हैरत हो गई, मुझे हैरत है कि प्रोफेसर याकूब साहब अंग्रेज़ी का आदमी जिसने कभी बच्चों के लिए लिखा नहीं, मेरे कहने पर प्रोफेसर याकूब ने रियली मार्वलस, उन्होंने ऐसी तारीख लिखी है कि मैं बता नहीं सकता कि क्या बच्चों के लिए ऐसे, यानी बच्चों को अगर आप पढ़ के सुनाएं तो बच्चे ये मेरा दावा है कि बच्चे हिल नहीं सकते अपनी जगह से, जिस अंदाज में लिखी है। मतलब मैं अपने आप को उनके सामने जो है बहुत छोटा महसूस करता हूँ कि मैंने ये प्रोफेसर याकूब साहब ने अपना जो उनके जो प्रोफेसर हैं उस ओहदे की जो उन्होंने, जो उनका लक़ब है, जो प्रोफेसर का जो उनका एक जो है, उन्होंने उसकी जो है वो लाज रखी।
आप देखिए। सईदी साहब हैं, वो भी कह रहे हैं कि माशाल्लाह आप बहुत खूब बातें कह रहे हैं, अदब इत्तिफाल के लिए ये बहुत जरूरी और कारआमद भी है। सही सही साहब, सही साहब तो को सलाम कहिए, हमारा हमारा सलाम कहिए। ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वहाँ से रिसाला निकालते हैं नई मंजिलें, और पाकिस्तान से। और ये पाकिस्तान इस वक्त अजमेर शरीफ आए थे, तो हमारे दिल्ली में आए थे, तो हमने इनके एजाज़ में एक छोटी छोटी सी एक नशिस्त रखी थी, जब से हमारे ताल्लुकात हैं। और बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे जो हैं ये रिसाला निकालते हैं जी। तो बहुत अच्छा लगा और लग भी रहा है, बल्कि हमारे लिए ये सच में एक एजाज़ है कि तहरीक बकाए उर्दू अ, हर रोज़ कोई ना कोई जब नया मेहमान लाती है, तो इसी उम्मीद से कि कुछ नए रास्ते, कुछ नई दिशाएं, कुछ नए मोड़ नजर आएंगे, कुछ नई चीजें सामने आएंगी। तो आज के इस आपके लाइव सेशन से बहुत बातें, बहुत से नई जहाज जो है वो सामने हुई हैं कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हम जो कि गजल लिख लेते हैं, अफसाना लिख लेते हैं, सोचते हैं कि बहुत कुछ हो गया, लेकिन वही बात है कि जब हमारी बुनियाद मजबूत नहीं होगी, जब हमारे बच्चे इस जुबान के साथ नहीं जुड़ेंगे, तो ऊपर तो अल्लाह ही मालिक है। तो मुदीर आला महनामा बज़्म मंजिल कराची, शुक्रिया सईद साहब, ये इन्होंने अपना मुकम्मल तारुफ दिया। और आपकी गुफ्तगू से आज बहुत से नए नामों का इजाफा हुआ है मेरे इल्म में भी। और जाहिर सी बात है, मार्टिन लूथर ने भी शायद कहा था कि किसी कौम की सरबुलंदी और वकार का इन्हिसार जो है उसके मजबूत किलों पर नहीं है, बल्कि उसके पढ़े लिखे नौजवानों या बच्चों पर है। तो बच्चों को पढ़ाया जाए, बच्चों को अखलाक व आदाब की तालीम दी जाए। आपकी वफाओं को, आपकी मोहब्बतों को, आपकी मेहनतों को तमाम नाजरीन सलाम करेंगे। शाताई साहब भी कह रही हैं कि मुझे बच्चों के लिए लिखने की तरकीब जो है आप ही ने दी है। हम भी आपके सफ़र में साथ साथ रहेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा, क्योंकि वक्त हम बातें करते जा रहे हैं और हमें 2.25 घंटे हो गए हैं, पता भी नहीं चला। आप कह रहे थे कि मैं कहूँगा क्या, तो मुझे वो जुमला जी याद है, आप कह रहे थे कि मैं तो शायर नहीं हूँ, मैं कहूँगा क्या। तो बहरहाल इतनी अहम बातें जो आज आपने बताई हैं हमारे लिए। आफाक उमर साहब आपके साथ जुड़ चुके हैं, वो कह रहे अशफाक, हैं कि अशफाक साहब। जी जी अशफाक साहब। तो जी जी। बेसिकली इनकी स्पेलिंग जब मैं देखता हूँ तो मुझे अपने अशफाक याद आ गए। तो बहरहाल मैं ये चाहूँगा कि जो इतना खूबसूरत आप सफ़र तय करते हुए यहाँ तक हमको लाए हैं, जिसमें आपने बहुत से अच्छे मसाइल की तरफ इशारा किया, हम आइंदा भी इस तमाम तर पहलुओं पर नज़र बनाए रखेंगे। तो मज़ीद चाहूँगा कि आज के दौर को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों के लिए आप कोई ख़ास पैगाम दें, जो हमारे इस प्रोग्राम का एक फॉर्मेट भी है। हम अपने मेहमानों से ये सवाल ज़रूर पूछते हैं, आपकी ज़ुबानी हमारे नौजवान नस्लों की कहानी उर्दू के हवाले से, कि वो किस तरह से अदब के साथ जुड़ें और अदब इत्तिफाल उनके लिए कैसे कारगर साबित हो सकता है। ये मेरा अपना सा सवाल। आरिफ, आपने बहुत अहम सवाल और बुनियादी सवाल किया है। इस सिलसिले में मैं ये कहूँगा, जैसे आप कह चुके हैं, कि अगर अदब अतफ़ाल नहीं होगा तो ये समझ लीजिए, ये बिल्कुल उस तरीके से है कि अगर किसी मकान की बुनियादें नहीं होंगी तो मकान पायदार नहीं होगा। ये बहरहाल हमें मानना पड़ेगा और हमें समझना पड़ेगा। और मैं अपने प्रोफेसर दोस्त सलीम मोहिउद्दीन साहब से और दूसरे और तमाम जो अदब आलिया को जो समझते हैं, जो अदब आलिया को कि भाईजान, जब तक आप सिराज अजीम की बचपन की उंगली पकड़ कर नहीं चलेंगे, आप बड़े नहीं होंगे। आप बड़े नहीं होंगे, ये मेरा दावा है कि आप बड़े नहीं होंगे। अदब अतफ़ाल ये सही है कि आजकल हमारे हालात, हमारी बातें, हमारी तहज़ीब और
زمانے کے تغیرات جو ہیں ادب اطفال کے معنی ہیں، لیکن میں اپنے جتنے بھی ناظرین ہیں ایک تو ان سب سے یہ میں دستبستہ یہ گزارش کروں گا کہ بھائی آپ لوگ 500 روپے کا پیزا منگا لیتے ہیں آرڈر دے کے، 1000 روپے کا کوئی واچ منگا لیتے ہیں امیزون سے، 2000 روپے کا فلپ کارٹ سے جو ہے اپنا جوتا منگا لیتے ہیں، ساتھ میں کبھی فیملی کے ساتھ گھومنے کے لیے گئے تو کھانا کھانے کے بعد صرف جو ہے 50 روپے کا پان کھا لیتے ہیں۔ لیکن یہ آپ سمجھ رہے ہیں یہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ 50 روپے کا پان کھانے کے بعد آپ نے اپنا پن تھوک دیا، میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، آپ نے اپنا پن تھوک دیا 50 روپے کا پان کھا کے۔ لیکن اگر آپ 10 روپے کی کتاب، 20 روپے کی کتاب اپنے گھر لاتے ہیں تو وہ آپ کی تہذیب محفوظ ہو گئی، وہ تہذیب آپ کی محفوظ ہو گئی، وہ آپ ان نئی جنریشن کو دے رہے ہیں جو ان کا حق ہے۔ اور اگر آپ ان کو یہ ان کا حق نہیں دے رہے ہیں، ان کو صرف آپ اپنے نام نمود کے لیے، اپنی شہرت کے لیے انگلش اسکولوں میں بڑے بڑے برانڈیڈ کپڑے، برانڈیڈ چیزیں، برانڈیڈ باتیں، برانڈیڈ یہ اور فلانا اور ڈھماکا، اور یہاں امریکہ جانا اور انگلینڈ جانا اور یہاں پر سیر کرنے کے لیے جانا، کبھی جاپان کے لیے سیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو کبھی سنگاپور کے لیے سیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آج وسائل کی کمی نہیں ہے، لیکن اگر کمی ہے تو آپ کی سوچ کی کمی ہے۔ آپ نے، اور جو یہ میرا کہنا ہے کہ جو اپنی زبان کو، اپنی تہذیب کو جو کمتر سمجھتا ہے تو اصلیت میں وہ خود فقیر ہے، وہ خود حقیر ہے، اس کی زبان حقیر اور فقیر نہیں ہے۔ اردو زبان بہت امیر ہے، اردو کو بچانے کا کام ان نوجوانوں کا ہے، عارف کا کام ہے، عارف کے پیچھے جو جنریشن آ رہی ہے اس کا کام ہے۔ سراج عظیم جیسے تو اب لد گئے، سراج عظیم جیسے لوگ اب ڈھلان پر ہیں، لیکن نیچے جاتے جاتے، ڈھلان پہ جاتے جاتے سراج عظیم یہ چاہتا ہے کہ وہ بلندی پر، اس بلندی پر جہاں اس کی تہذیب ہے، اس کا جھنڈا اپنے بچوں کے ہاتھ میں دے کے جائے، تاکہ کل وہ اس کے علم بردار بنے، کل اپنی تہذیب کے علم بردار بنے، کل اپنے معاشرے کے علم بردار بنے، کل اپنے دین کے علم بردار بنے، جو دین ہماری زندگیوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ ایک روشن مثال بنے، اپنے ملک کی ترقی میں اپنے زبان کے ساتھ حصہ لیں۔ وہ زبان، میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، بہت دعوے کے ساتھ اور پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ اردو جیسی زبان آپ کو کہیں ملے گی نہیں۔ تشریف رکھیے محترم، بہت شکریہ محترم، آپ کے ہم احسان مند ہیں محترم، آپ کی کرم فرمائیاں ہیں محترم، آپ کی شخصیت جو ہے سر آنکھوں پر ہے۔ مجھے لائیے جملے ایسے جملے، ایسے تہذیب یافتہ جملے لائیے، بتائیے مجھے کس بات کی شرم ہے؟ کہیں کسی زبان کے اندر مجھے دکھا دیجئے آپ کہ محترم آپ ہمارے سر آنکھوں پر، کسی بھی زبان میں دکھا دیجئے یہ بات، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ کا غلام ہو جاؤں گا میں۔ یہ صرف اور صرف
یہ صرف اور صرف صفت جو ہے یہ صرف اردو کی ہے، یہ صرف اردو کی صفت ہے کہ آپ بے انتہا مہذب، آپ بے انتہا مہذب ہیں، آپ بے انتہا مہذب ہیں کہ صرف، اور یہ چاہے زمانہ کچھ بھی کہتا رہے، دنیا کو تہذیب جو سکھائی ہے وہ اردو زبان نے سکھائی. یہ میرا دعویٰ ہے، یہ میرا غرور ہے، یہ میرا تکبر ہے، اور میں اس کو کہنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا. اور بچوں کا ادب اتنا ہی ضروری ہے جتنا آپ کے لیے ادب عالیہ ہے. جی فرمائیں. بہت اچھا. اور سچ میں ہمارے ناظرین میں سے ترنم صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ بہت عمدہ پیغام، بہت اچھی گفتگو، کہ یہ 2 گھنٹے کا سفر پتہ ہی نہیں چلا. اور اس کے لیے یقیناً سراج صاحب آپ جو ہیں میں کہوں گا کہ آپ کی یہ ہمت ہے، آپ کی اس ہمت کو داد دیتا ہوں کہ اتنی دیر آپ بیٹھے رہے اور اتنی معیاری خوبصورت علمی ادبی گفتگو کی ہے آپ نے. میر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سلام. سلیم محی الدین صاحب کا وعدہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک پروفیسر کا وعدہ ہے آپ سے، ایک سچے انسان سے وعدہ ہے کہ میں لکھ رہا ہوں اور بہت جلد آپ کو کچھ ادب احتفال کے حوالے سے دوں گا. اگر سلیم محی الدین، میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر سلیم محی الدین کی پہلی جو ہے بچوں کے لیے کوئی تخلیق آئے گی، وہ لازوال میں بہت ہی اس کو احتشام کے ساتھ چھپے گی. یہ بھی کہہ دیتا ہوں، پاکستان ہر جگہ چھپے گی، یہ میرا وعدہ ہے. زندہ. تو ہم ایک دوسرے سے عہد و پیما کیے ہیں، تو آئندہ بھی انشاءاللہ بنے رہیں گے. عظیم صاحب کچھ خاص پیغام آپ اگر دینا چاہیں 1-2 منٹ میں، کچھ ایسی بات جو آپ کہنا چاہیں اور ابھی تک ہماری گفتگو میں وہ شامل نہ ہو پائی ہو. میں عارف ایک بات آپ سے کہوں کہ میرا ایک بڑا یونیک کام ہے جو میں چاہتا ہوں، اور میں خود چاہتا ہوں. میں نے انگریزی کے جو پوئٹس ہیں ان کے اوپر، جو ان کے انگریزی کی جو نظمیں ہیں اس کے اوپر میں نے جو ہے بچوں کی کہانیاں لکھی ہیں. وہ کہانی بہت مقبول ہے، اس کے اندر جو پیغام ہے، مطلب بہت جلدی سے آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ولیم ورڈسورتھ جو ہے وہ نیچر کا شاعر ہے، اور اس نے ہمیشہ نیچر کی بات کی ہے، پھولوں کی بات کی ہے، موسموں کی بات کی ہے، اور چاندنی رات کی بات کی ہے. اس کی ایک بہت ہی شور آفاق نظم ہے لوسی. اس لوسی جو ہے وہ ایک اصل میں پہاڑی علاقوں میں، اور خاص طور سے یورپ کے علاقوں میں، پہاڑی کے علاقوں میں، وہ ایک لوسی کا ایک پھول ہوتا ہے، سفید رنگ کا ہوتا ہے اور ہلکے پیلے رنگ کا ہوتا ہے لوسی کا پھول. اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جب چاندنی رات میں چمکتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس سے کلرز جو ہے وہ اس میں سے کلرز جو ہیں ایمٹ ہو رہے ہیں، جیسے اس کے اندر سے روشنی نکل رہی ہے. اور تو ولیم ورڈسورتھ نے اس کو لوسی کے پھول کا ذکر کیا اس کے اندر، کہ اس سے جو چاندنی رات ہوتی ہے تو اس میں جو ہے جب وہ پھول کھلتا ہے تو اس میں جو ہے اسے میوزک کی آواز آتی ہے، نغموں کی آواز آتی ہے، وہ پھول کھلتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے. میں نے وہ لوسی کا وہ خیال کہ لوسی کا پھول 14ویں رات میں کھلتا ہے، میں نے وہ وہاں سے اٹھا کر ایک جیتا جاگتا کردار بنا دیا ہے لوسی، اور اس کے اوپر ایک کہانی لکھی جو بہت مختصر الفاظ میں، تھوڑا سا آپ کا ٹائم، کہ وہ لوسی کو میں نے ایک بچی بنا دی ہے، 7-8 سال کی بچی ہے، جو اپنے بچے، وہ پہاڑی علاقے میں رہتی ہے، اس کے ساتھ اس کا ایک چھوٹا سا کتا ہے سفید رنگ کا، اس کے ساتھ برف کے ساتھ کھیلتی ہے. بہرحال اس کی ماں جو ہے وہ گھروں میں کام کرتی ہے، وہ اس کا باپ بیمار پڑ جاتا ہے تو وہ شہر جاتی ہے اس کے لیے دوا لینے کے لیے، اور طوفان آنے والا ہوتا ہے. وہ بچی جو ہے اپنے باپ کی بھی تیمارداری کرتی ہے، ماں آئی نہیں ہے، شام کا وقت ہو چکا ہے، تو وہ اسٹیشن پہ اس کو دیکھنے کے لیے جاتی ہے. تو لالٹین جلا کر، چھاتا لے کر اور سر پر رومال باندھ کر جو ہے وہ اپنی ماں کو تلاش کرنے کے لیے جاتی ہے. باپ اس کا منع کرتا ہے کہ بیٹا برف کا طوفان آنے والا ہے، ابھی مت جاؤ، لیکن وہ باپ کو کہتی کہ میں فوراً آتی ہوں. اور جانے کے بعد جاتی ہے تو وہ جو ہے بچی اس میں مطلب اس میں کیا بولتے ہیں، طوفان میں پھنس جاتی ہے. طوفان میں پھنسنے کے بعد وہ اس کی بہرحال باڈی جو ہے وہ اس میں دب جاتی ہے برف میں. اب وہ لوگ، اس کی ماں آ جاتی ہے گھر پہ، دیکھتی ہے کہ میری بیٹی نہیں ہے، تو وہ تلاش کرنے کے لیے رات بھر اس کے ماں باپ تلاش کرتے رہتے ہیں. اور وہ جو
जो गांव वाले हैं वो भी तलाश करते हैं। फिर क्या होता है कि वो बच्ची नहीं मिली, तो जब तलाश करते होते हैं तो वो 14वीं का चांद होता है, उसमें वो लूसी का फूल खिल रहा है, तो उसमें उसके गुनगुनाने की आवाज़ और वो जो है वो सफ़ेद फूल जो खिलता है, तो लोगों ने उसका नाम जो है लूसी का फूल रख दिया, और लोग गांव वाले कहते हैं कि ये साहब ये लूसी का फूल है। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, खुश रहें आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरिफ साहब। मैं अपने दोस्तों को, अपने तमाम नाजरीन का बहुत मशहूर हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने 2 घंटे मेरा प्रोग्राम देखा। मैंने अगर कुछ गलत किसी के लिए कह दिया हो तो बहुत माजरत, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, बच्चे हमारी तहजीब का मुस्तकबिल हैं। उर्दू हमारी तहजीब है, और अदब अतफाल तहजीब की बुनियाद है। तो इस तहजीब को, इस अदब अतफाल को अपने बच्चों को दीजिए, बच्चों को बताइए, बच्चों को समझाइए, बच्चों को किताबें दीजिए, रिसाले दीजिए, बच्चों को अदब अतफाल पढ़ाइए। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत करम, बहुत एहसान। बहुत खूब। आपके इसी पैगाम से आज का ये प्रोग्राम हम इख्तिताम पजीर करेंगे कि अदब तहजीब है, और इस तहजीब की एक अहम कड़ी अदब अतफाल। बेशक नाज़रीन, आपने 2 घंटे का आज ये लेक्चर समाअत किया, आपने देखा, सुना और सराहा, हमें हौसला अफजाई बख्शी। इन तमाम तर बातों के लिए मैं बेहद ममनून और मशकूर हूँ। और बिलखसूस सिराज साहब आपका, कि आपने इतना वक्त दिया। मैं जानता हूँ कि आप कितने अजीम तो हैं ही हैं, लेकिन मसरूफ कितने हैं ये मैं जब आपसे करता हूँ। नाजरीन, इस उम्मीद के साथ कि कल हम फिर आपके रूबरू आएंगे किसी नए मेहमान को लेके, जब तक के लिए हमें आज इजाज़त दीजिए। शब खैर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, शब खैर, अल्लाह हाफिज।